ATS के थ्रू हमारे ATS में, तो वो ना बराबर से कैप्चर नहीं करता। उसमें क्या होता है, हालांकि वो हमें बता देता कि ये चीज़ गलत आ रही है इसमें, ठीक है, तो हमको फिर मैन्युअली उसको अपडेट करना पड़ता है। बट जो बड़ी ITS कंपनी आती है जहाँ पे 300 एप्लीकेशन एक साथ आते हैं ना, वो लोग नहीं करते, सिंपली रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये आप लोगों का चांस नहीं चलेगा, तो आपको थोड़ा सा वो ध्यान रखना है। ओवरऑल ठीक है, रेज्यूमे लाइक एवरेज होगी, कैनॉट बी सेट लाइक अच्छा है, आप और अच्छा कर सकते थे इसको, ठीक है। नेक्स्ट अप ये बचा है, ठीक है। अभी इसी ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, तो जो बाकी लोग हैं उसमें से कौन लोग हैं, कोई ऐसे 3 से 4 लोग या सामने लोग बताना चाहते हो जिन्होंने क्रिएट किया अभी ड्राफ्ट करने वालों में से? आगे है ना, मुझे और कौन आ रहा है? का और ठीक है, आप आइए। एक लास्ट पर्सन और कौन है? जल्दी और एक लास्ट, अच्छा ठीक है आप, ठीक है। अभी 1 by 1 स्टार्ट विद अनम फर्स्ट, बैठिए। So firstly, I write candidate name should be in the top, and then objective, and objective should be very short. Like I am ready to work in an organization where I can showcase my skills and strengths. And then work experience, and the date should be correct there. Like you are, if you have current work experience, you can write there currently. And then projects. After that projects, and then education details. In education details, we have to write first master's degree, then bachelor's degree, then HSC, and then SSC. After that, I write skills over here, and in skills, I write graphic designer and digital marketing, and then achievements and certification. Achievements like Achievements. what is the headline? राइट नाउ आप लोग सिर्फ पॉइंट नोट करो, ठीक है। अभी इसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आई डायरेक्टली स्टार्ट विद दिस स्लाइड, और फिर आप लोग क्रॉस चेक करना कहाँ पे डिलीट हो रहे हो, ठीक है। Then hobbies, after that certification and languages, and then personal information. Firstly, we take profile photo, then name of the candidate who is applying, then role for which we are applying, and then career objective. Then in detail we describe the personal details like the contact, email, address, profile link of GitHub and LinkedIn. Then education, first is PG, post graduation, then graduation, HSC, SSC. And then year of all the education and the percentage, and then skills, and then hobbies, then work experience of the candidate recently, and then older experience, then project details, the description of the project, then additional certificate. बाकी सब नोट करिए कि आप लोगों ने जो बनाया है उसमें कौन से पॉइंट्स मिसिंग है जो ये लोग बोल रहे हैं, और आपने जो डाले हैं वो, ठीक है। और फिर बाद में हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो आप उसमें से कैच कर लें कि रिलेवेंट कौन कौन से हैं, ठीक है। जैसे आप की टेक अवे क्या था, आपको क्या लगता है जो आपने बनाया, जो अभी तक जो डिस्कस किया हमने, तो उसमें से कौन सी चीज़ आपको लगती है कि सही है, कौन सी चीज़ आपने मिस की? अचीवमेंट्स मिस किए। So this is my resume. I have mentioned my photo in top of the resume. Then which post for I am applying, that's is graphic designing, and phone number and my mail ID which I have mentioned here. Then the second part is profile, skills which I have learned in graphic designing. Then languages, interest. Then on top of the resume I have mentioned my education with proper dates and my experience and which project I have done till now in graphic design. Great, wonderful resume. Big clap for us. ये
वंडरफुल जॉब। सी एकदम प्रॉपर्ली सब कुछ है, एजुकेशन भी है, एक्सपीरियंस भी है, प्रोजेक्ट्स भी है, टेक्निकल स्किल्स भी है, लैंग्वेजेस भी है, इंटरेस्ट भी है। बस एक अचीवमेंट आप ऐड कर सकते हैं, इसमें आप सब अचीव कर सकते हैं। ठीक है, और जो हेडलाइन है, हेडिंग है, वो भी प्रॉपर है, नाम है, रोल है, प्रोफाइल है, कॉन्टैक्ट नंबर है, ईमेल आईडी है, कितना प्रॉपर्ली यूटिलाइज किया उसमें। देखो हैंडराइटिंग भी अपनी बहुत अच्छी है। ओके ग्रेट, नेक्स्ट। So this is my resume, and I have mentioned my name here and which position I applied for. Then I give my professional name here, that and I mentioned phone numbers also, and I have a domain name, so I mentioned here, and also LinkedIn link here also, and in this section I have write objective in proper manner what ATS detect, and then I mention education details, then skills from higher to interest, and languages, and experience I have mentioned what I experience, and then projects and achievements. Okay, wonderful job. This is also good resume. Okay, बट मेन पार्ट है कि ऑब्जेक्टिव क्या है वो आपको मेंशन करना चाहिए था। ठीक है, तो अच्छा लगा बिकॉज अभी मेन पार्ट नहीं हम डिस्कस करने वाले कि ऑब्जेक्टिव में क्या मेंशन करना है। ओवरऑल इट्स अ गुड। ऑब्जेक्टिव में मतलब हमने क्या क्या किया है और कितने मंथ का ड्यूरेशन है, तो हम शॉर्टली हम अपना जो Yeah, that's good. If you are going to improve that thing, then that's good part. ठीक है, वैसा ही होना चाहिए। Good day. Next. क्या हो गया, मैंने कोई जोक मिस किया क्या? So I have mentioned here the candidate name, photograph, personal details, sexual, education in a chronologically reverse order. Then बातें नहीं। here I also have mentioned the position for which candidate is applying, what candidate is all about in 2 lines, then work experience from in which organization the candidate currently is working, this I have mentioned, and along with the project. What I have missed is objective, strengths, achievements, certifications, languages and interests. Great. So उन्होंने एक्चुअली की टेक अवे लिया है जो हमने अभी तक डिस्कशन किया उसका, हमने इनपुट किया वो चाहिए, बट क्या मिस किया वो भी समझना जरूरी है। ठीक है, तो उन्होंने वो किया। सो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर शेयरिंग इट। ठीक है, नाउ विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन। आई होप आप लोगों को एक बेसिक ओवरव्यू अंडरस्टैंडिंग आ गई कि रिज्यूम किस हिसाब से होना चाहिए। ओके, सब सेटल डाउन हो गए। फर्स्ट हेडिंग ऑफ द रिज्यूम क्या होना चाहिए हेडिंग में? अभी हमने देखा फुल नेम, ठीक है, नेम ऑफ कैंडिडेट होना चाहिए प्रॉपर बोल्ड लेटर में। सी फर्स्ट इंप्रेशन इज द ओनली इंप्रेशन व्हिच काउंट्स। आपका रिज्यूमे अगर बहुत स्लोपी होगा तो आपका सीवी नहीं रिजेक्ट हो जाएगा। हम लोग इंटरव्यू देने कैजुअल में पैजामा में जाते हैं क्या? तो फिर रिज्यूमे का हल्का क्यों रखना, राइट? तो आपका हेडिंग में सबसे पहले आपका नाम होना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, सीवी, करिकुलम विटा, रिज्यूम वो लिखते हैं। रिक्रूटर को पता है कि ये सीवी है, वो चीज़ें मेंशन मत करो। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़ आपको मेंशन करनी है कि आपका प्रोफाइल क्या है। आप वन स्टैक डेवलप करो तो आप वन स्टैक, आप वो अलग बात, आप अप्लाई किसके लिए कर रहे हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर बहुत से लोग जो है वन स्टैक और ग्राफिक दोनों कर रहे हैं, बट आपको अप्लाई करना है सिर्फ ग्राफिक के लिए, तो वन स्टैक डेवलपर प्लीज मत डालो। ठीक है, वो चीज़ आपको ध्यान रखना है। उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन क्या क्या आना चाहिए कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में? कॉन्टैक्ट, ईमेल, पोर्टफोलियो, ठीक है, गिटहब, और जो भी आपका जो भी प्रोजेक्ट्स का जो रहता है जैसे कि गिटहब हो गया, और जो भी प्रोजेक्ट वेबसाइट्स रहती है जिसका लिंक आप ऐड कर सकते हो, तो आपको वहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, तो ये रहेगा आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन या हेडिंग ऑफ द रिज्यूम। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है? नाउ क्लियर एंड फोकस ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव आप लोगों ने कभी देखा लिखा है सीकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी इन अ वेल रेप्यूटेड कंपनी वेयर आई कैन यूटिलाइज माय स्किल्स, लिखते हैं ऐसे लोग? सही है क्या ये? नहीं, यस लिखते हैं। हाँ, सही क्या होता है? सही क्या होता है? आप लोग वन स्टैक डेवलपर है, कोई बता सकते हैं एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव? जो काम कर रहे हैं अभी, हाँ, उसके बारे में थोड़ा बताना है कि क्या काम कर रहे हैं।
और किस पोजीशन पे है वो बताना है। नहीं, काम करने को तो वर्क एक्सपीरियंस में बताएंगे। नहीं सर, जो करंट में काम चल रहा है उसका थोड़ा जो कुछ पॉइंट रहते हैं हाँ। उसमें से एक पॉइंट लेना है। हाँ, और फ्यूचर में क्या करना चाहते हो, किस टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहते हो? जो आपका नेक्स्ट पार्ट का द टेक्नोलॉजी दैट यू वांट टू यूटिलाइज वो मेंशन करना चाहिए, बट फर्स्ट पार्ट जो आपने कहा वो होना चाहिए। आप लोगों को महाभारत की वो स्टोरी पता है जिसमें जब अर्जुन और बाकी सारे भाई जब छोटे थे तो वो गुरुकुल गए थे द्रोणाचार्य के पास। तो द्रोणाचार्य ने एक उनको ऑब्जेक्टिव दिया था, क्या था किसी को याद है? मछली की आँख, पैरेट सॉरी ठीक है, पैरेट की आँख थी, तोते की आँख थी, ठीक है। तो द्रोणाचार्य ने सारे भाइयों को पूछा था कि आपको क्या दिख रहा है? पैरेट कहाँ बैठा था? पेड़ पर बैठा था, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने पूछा भीम को, तो भीम को क्या दिखा था? भीम को आम दिखे थे। तो भीम का ऑब्जेक्टिव क्या था? उसको भूख लग रही थी, ठीक है। नेक्स्ट में युधिष्ठिर को पूछा, तो युधिष्ठिर ने क्या कहा? अरे यार पैरेट है, जानवर है, मारना क्यों है? मारना नहीं चाहिए सर, क्या बोल रहे हो आप? ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? धर्म था। फिर पूछा गया दुर्योधन को कि आपको क्या दिख रहा है? तो बहुत मटेरियलिस्टिक पर्सन था, पूरा पेड़ दिख रहा है, मेरे 100 भाई है, क्या मजा आएगी, सारे आम ले लेंगे। सर आम दिख रहे हैं, ठीक है, गुरु जी आम दिख रहे हैं। फिर पूछा गया अर्जुन को, तुम्हें क्या दिख रहा है? तो अर्जुन ने क्या जवाब दिया था? तोते की आँख दिख रही है। क्यों? उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? तोते की आँख थी। गुरु जी जो थे उसके जो कंपनी थी, जिन्होंने कहा था कि हमारा रिक्वायरमेंट ये है आँख, उसने क्या कहा था? तुझे क्या दिख रहा है? मुझे आँख दिख रही है। तो आपका लक्ष्य, आपका ऑब्जेक्टिव जो होना चाहिए स्पेसिफिक होना चाहिए, किसको? जॉब को, जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, जो रोल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। अब जैसे मान के चलिए आप सब मर्न स्टैक डेवलपर है, तो मैं कह सकता हूँ मेरा ऑब्जेक्टिव है दैट आई एम एन एंथुसियास्टिक मर्न स्टैक डेवलपर who wants to contribute to a fast paced tech startup or जो भी कंपनी है, and I want to contribute my technical skills which I have developed in MongoDB, Express, Node और React जो कुछ भी है। तो ये कितना स्पेसिफिक हो गया, आपने बता दिया कि आपके पास ये स्किल्स है और आप इस टाइप की कंपनी में अप्लाई करना चाहते हो, ना कि आपने कुछ इररिलेवेंट या बहुत जेनरिक टर्म यूज किया है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू मेक श्योर दैट योर ऑब्जेक्टिव इज कंसाइज, स्पेसिफिक एंड इट शुड हाईलाइट वैल्यू। वैल्यू किस टाइप की कि आप में कौन सी यूनिक स्किल्स है जो आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हो। सी आप उस ऑब्जेक्टिव के बाद बताना चाहते हो, सी जनरली पढ़ते नहीं है, बट जब भी पढ़ते एक दो लाइन तो उससे पता चलना चाहिए कि आप बता रहे हो कि सी आई एम दैट काइंड ऑफ ऑसम पर्सन हु इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट दिस टू योर ऑर्गेनाइजेशन, नाउ गिव मी एन अपॉर्चुनिटी, ठीक है, वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी। तो उस टाइप से आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। और टेलर टू जॉब मतलब जैसे मैंने आपको बताया जो जॉब स्पेसिफिक है, अगर ग्राफिक डिजाइनर है तो UI UX ये सारे कीवर्ड्स आने चाहिए। तो जब ATS स्क्रीन करेगा तो वो पिक करेगा वो सारे कीवर्ड्स। आपने हार्डवेयर, नेटवर्किंग, लिनक्स डाला है वो सीधा रिजेक्ट कर देगा, बिकॉज जॉब डिस्क्रिप्शन में ग्राफिक डिजाइनिंग है, उसमें जो रिलेवेंट जॉब कीवर्ड्स होते हैं वही आपके रेज्यूमे में होने चाहिए। आपको आता है ठीक है, बट वहाँ पे मेंशन मत करो, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट है? वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है, क्या होना चाहिए वर्क एक्सपीरियंस में? ऑर्डर क्या होना चाहिए सबसे पहले? रिवर्स ऑर्डर होना चाहिए, मतलब सबसे जो रिसेंट है हमारा वो होना चाहिए, ठीक है। प्लस इसमें और क्या क्या होना चाहिए वर्क एक्सपीरियंस में? रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज और कंट्रीब्यूशन होना चाहिए आपका, राइट, ड्यूरेशन होना चाहिए, व्हाट एल्स, और क्या होना चाहिए? डेट्स प्रॉपर होने चाहिए, ठीक है, आपको बराबर याद रहेगा, ठीक है। सी इट स्टार्ट्स विद डीटेल्स और इंटर्नशिप्स एंड प्रोजेक्ट्स, यूज एक्शन वर्ब्स टू डिस्क्राइब योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अकॉम्प्लिशमेंट्स। तो ये सारे वर्ड है। हाईलाइट कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में आपने क्या कंट्रीब्यूट किया है एज अ इंडिविजुअल पर्सन। टीम कंट्रीब्यूशन मत लिखो वहाँ पे, अगर आप टीम कंट्रीब्यूशन लिख रहे हो तो आपको सारा चीज़ बताना पड़ेगा, क्योंकि उसमें क्या हो जाएगा, आप वो सारी चीज़ें भी बता दोगे जो आपने नहीं किया है। और अगर इंटरव्यू में गलती से पूछ लिया तो वही हाल होगा जो अभी आप लोगों के इंटरव्यू में हो रहा है, बता नहीं पा रहे हो, बोल नहीं पा रहे हो, ठीक है। दैट शुड नॉट हैपन। इनपुट योर कंट्रीब्यूशन, स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन जो आपने दिया है, ठीक है, प्लस क्वांटिफाई रिजल्ट्स। क्वांटिफाई रिजल्ट्स का मतलब क्या होता है? अभी रेज्यूमे में आप लोगों को जैसे मैंने बताया, जब तक आप लोग मैट्रिक्स यूज नहीं करोगे, जैसे शारदा ने मैट्रिक्स यूज की है, उसने परसेंटेजेस डाले हैं, ठीक है। अगर आप मैट्रिक्स यूज नहीं करोगे तब तक आप अपने आप को डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे वो सारे ग्राफिक डिजाइनर्स हैं या फिर वो सारे डिजिटल मार्केटर्स हैं जिन्होंने उस पोजीशन के लिए अप्लाई किया। से फॉर एग्जांपल कंपनी में एक इंटरव्यू के लिए रिक्वायरमेंट है कि जो डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन चला सके, ठीक है। और हर किसी ने लिखा है प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स मैंने लिखा है, ठीक है। बट इंटरव्यू टाइम में भी आपने सेम चीज़ की,
बट अगर किसी एक पर्सन ने कह दिया कि मैंने जो डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन चलाया है उससे क्या हुआ है, 20% कॉस्ट रिडक्शन हुआ है, इतने आउटरीचेस हुए हैं, इतने लोगों ने इंप्रेशंस दिए, तो क्या हो जाएगा, सामने वाले को समझ में आएगा, हाँ अच्छा अब इसने क्वांटिफाई किया है तो इसका मुझे कंट्रीब्यूशन समझ में आ रहा है, राइट। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स इन योर रेज्यूम, इन योर वर्क एक्सपीरियंसेस। प्लस जैसे मैंने आपको कहा था कि आपको XYZ जो फॉर्मूला है उसको यूज करना है। XYZ का मतलब क्या पता है मैंने, अकम्प्लिश्ड X बाय इम्प्लीमेंटिंग Y which led to Z, ठीक है। अभी ये आप जो है आपकी जो टेक्निकल काम है उसमें आप उसको इनपुट करो, ठीक है। जैसे कि मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैं एक डेवलपर हूँ, ठीक है, तो आई क्रिएटेड अ कस्टमर डेटा एनालिसिस टूल यूजिंग पाइथन एंड जावा और पाइथन एंड SQL which led to 20% reduction in query time। समझ में आ रहा है, इसको आप टेक्निकली मत समझिए, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, आप लोगों को बेहतर समझेगा, बट समझो जस्ट को समझो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो वो चीज़ें वहाँ पे होनी चाहिए। अगर आप लोग वो चीज़ें वहाँ पे डाल रहे हो तो सामने वाले को इम्पैक्ट पड़ेगा। सी वर्क एक्सपीरियंस इज नॉट अबाउट सेलिंग योर डिफरेंट स्टफ्स, मतलब आपके पास जो सारी चीज़ें सब डाल दी वैसा नहीं है, आपने वो समराइज किस फॉर्म में किया, आपने क्या इम्पैक्ट लाया है बाय कंट्रीब्यूटिंग समथिंग दैट शुड बी देयर इन योर वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है। सो वो पॉइंट आप नोट कर लो। एक्शन वर्ब्स क्या होता है, जैसे मैं आपने लिखा है डेवलप, एनालाइज, इम्प्लीमेंटेड, इंजीनियर्ड, बिल्ड, लेड टू बिल्ड, ये सारे अलग अलग एक्शन वर्ब्स है। आप लोग गूगल में थोड़ा सा देखना है इसके बारे में, तो उससे आपका सेंटेंस स्टार्ट होना चाहिए। और एक चीज़, आपका वर्क एक्सपीरियंस बुलेट पॉइंट्स होना चाहिए, पैराग्राफ में नहीं होना चाहिए। इवन इफ यू आर यूजिंग सेंटेंसेस, मेक श्योर कि वो 2 से ज़्यादा सेंटेंस में ना हो, ठीक है। बिकॉज क्या, अगर आप सब कुछ वही लिख दोगे तो आप बोलोगे क्या, बिकॉज बहुत सी बार बोलते हैं ना आपको इंटरव्यूअर्स कि टेल मी समथिंग व्हिच इज नॉट मेंशन इन योर रिज्यूम, तो आप लोगों को टाइम उस टाइम पे बोलने के लिए होना चाहिए, वरना आप वही बोलोगे जो वहाँ पे लिखा है तो कोई सेंस नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसमें कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है किसी को? और एक चीज़, वर्क एक्सपीरियंस में आपको जॉब टाइटल, कंपनीज नेम, लोकेशन, टेन्योर फॉर द एम्प्लॉयमेंट प्रॉपरली मेंशन करना है, ठीक है। उसमें सवाल, उसको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कहाँ काम कर रहा है, किस डेजिग्नेशन है। बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ डेजिग्नेशन डालते ही नहीं है, अरे क्यों नहीं डाल रहे हो यार, दे आर लुकिंग फॉर अ सीनियर एसोसिएट, लेट देम नो यू आर वर्किंग एज अ एसोसिएट एंड यू कैन बी अ पर्सन हु कैन बी कंसीडर्ड फॉर सीनियर एसोसिएट रोल, ठीक है। तो वो डेजिग्नेशन डालो आप लोग, और टेन्योर प्रॉपर्ली डालो। टेन्योर का बहुत प्रॉब्लम है PSK के सारे एम्प्लॉइज़ में, टेन्योर कोई प्रॉपर्ली नहीं डालता है, बहुत कैजुअली लेते हो आप लोग। और आप लोगों को जब पूछा भी जाता है इंटरव्यू पे कि आपके यहाँ गैप कहाँ आ रहा है, तो आप लोग बताइए नहीं बात, और आपको पहले ये नहीं पता कि मेरे इसमें गैप आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये टेन्योर वाला पार्ट है, एजुकेशन हो या कंपनी हो प्रॉपर्ली मेंशन करो, ठीक है। और जरूरी नहीं कि आपको रिज्यूम में जस्टिफाई करना है मेरा गैप इसमें बैक है या गैप है, वो आप बाद में इंटरव्यू के टाइम पे करो, उसके लिए प्रिपरेशन अलग रहेगी, बट मेंशन द थिंग्स वेरी क्लियरली, ठीक है। नेक्स्ट इज एजुकेशन विद परसेंटेज एंड ईयर। लिस्ट इन रिवर्स ऑर्डर, स्टार्ट विद योर मोस्ट रीसेंट क्वालिफिकेशन। अब अभी सबसे पहले आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ है या ग्रेजुएशन हुआ है, वो ऑर्डर में रहेगा। बहुत से लोग मैं देखता हूँ 10 से स्टार्ट करते हैं, 10, 12, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, दैट इज द रॉन्ग फॉर्मेट। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है तो एट मैक्स कीप ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, और उसमें ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने कौन सी डिग्री ली है, कौन से इंस्टीट्यूट से आप पास आउट हो, क्या आपकी CGPA रहे, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कुछ लोग, मैं मतलब फार्मा में देखता हूँ स्पेसिफिकली, IT में बहुत कम रहता है, वो लोग सारे सेमेस्टर्स डालते हैं, फर्स्ट सेम, सेकंड सेम में कितना आया, थर्ड सेम में क्या CGPA आया, नॉट रिक्वायर्ड यार। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है, ठीक है। और अगर जैसे मैं आपको कहा इफ यू आर अ फ्रेशर, देन सबसे टॉप में आपको होना चाहिए एजुकेशन, ठीक है। और अगर आपने कोई अच्छे इंस्टीट्यूट से किया है तो उसको प्रॉपरली गोल्ड, अगर NIT से किया है या कोई बड़ी टेक स्कूल से, कॉलेज से किया है तो उसको गोल्ड में रखो। आपके CGPA अच्छे है तो उसको अच्छे से वहाँ पे हाईलाइट होने दो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको मेक श्योर करनी है। अगर आपकी CGPA एवरेज है, ऐसी बहुत सी कंपनी CGPA बेसिस पे भी जज करती है, तो उसको बेटर है या मेंशन मत करो, ठीक है। इंक्लूड की डिटेल्स मेंशन, वो तो मैं आपको बताया। प्लेसमेंट मैटर्स फॉर रीसेंट ग्रेजुएट्स, प्लेस एजुकेशन नियर द टॉप, ठीक है। और एजुकेशन वाले कहाँ मेंशन करेंगे मैं आपको बताऊंगा आगे। यहाँ तक सबको समझ में आया? किसी को कोई डाउट है? Not in this section here. You will be having different section for projects and internship.
ठीक है। अभी बहुत सारे लोग जो वर्क एक्सपीरियंस है मैंने पार्ट लिस्ट कर दिया, आप लोग जो है अलग से प्रोजेक्ट एंड इंटर्नशिप, सो दोज हु आर फ्रेशर्स और इवन इफ यू आर नॉट फ्रेशर बट यू हैव डन प्रोजेक्ट्स एंड इंटर्नशिप, यू कैन क्रिएट अ सेपरेट सेक्शन फॉर देयर फॉर इट, एंड वहाँ पे आप वो सारे प्रोजेक्ट्स इंटर्नशिप मेंशन कर सकते हो। सी वो प्रोजेक्ट इंटर्नशिप मेंशन करने पे सामने को क्या समझ में आएगा, आपकी अकम्पलिशमेंट्स क्या है, आपकी कैपेबिलिटीज़ क्या है, आपने कौन कौन से इस पे काम किया। जैसे कि अगर मैंने कोई अच्छी जगह से इंटर्नशिप की है, लाइक गूगल से किया है, एडोबी से किया है, राइट, तो मैं वो चीज़ को वहाँ पे हाईलाइट करूँगा बिकॉज वो इंटर्नशिप काउंट होगी, ठीक है। इवन इफ यू आर नॉट हैविंग एक्सपीरियंस, यू कैन गिव अ डिफरेंट सेक्शन फॉर प्रोजेक्ट एंड इंटर्नशिप, ठीक है। एंड रूल अप्लाइज दी सेम, वहाँ पे भी XYZ आपको फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। अचीवमेंट्स, एकेडमिक, प्रोफेशनल अकम्पलिशमेंट एंड सर्टिफिकेशन। अब ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को पता रहना चाहिए, सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए कि मेरे अकम्पलिशमेंट्स क्या है, मेरे अचीवमेंट्स क्या है, ठीक है। अगर नहीं है तो समझो, थोड़ा सा आप ड्रिल करो कि आपने अभी तक पूरे करियर में एजुकेशन वगैरह में ऐसा कौन सा काम किया है जो कि मैं इसमें इनपुट कर सकता हूँ, ठीक है। अकेडमिक में आपके जैसे कि स्कॉलरशिप हो गया, आपके स्कोर हो गया, कोई अकेडमिक कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया हो, वहाँ पे अलग से रिकॉग्निशन मिला, हम लोग स्कूल में जाते हैं ना, अलग अलग कॉम्पिटिशन्स के लिए जाते हैं, तो वो चीज़ भी आप मेंशन कर सकते हो। बट याद रखिए कि उसका इम्पैक्ट आपकी कोई ना कोई ट्रेड को, पर्सनल स्किल को हाईलाइट करे, ठीक है। सी अगर आप लोग रखने के लिए कुछ भी रख दोगे बट उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, उसको रिलेट नहीं कर पाओगे उस पोजीशन के लिए, इट कुड बी फॉर टेक्निकल पर्पस और इट कुड बी फॉर प्रोफेशनल लाइक सॉफ्ट स्किल पर्पस, ठीक है। लीडरशिप दिख रही है, टाइम मैनेजमेंट दिख रहा है, अटेंशन टू डिटेल दिख रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग दिख रहा है आपकी ये कॉम्पिटिशन में कैप्टन ऑनर्स पे, तो उसको हाईलाइट होना चाहिए, वो आपको जस्टिफाई करना आना चाहिए। मैं बहुत सी बार देखा हूँ कि इंटरव्यू में आप लोग जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो जो आप लोग मेंशन कर रहे हो रिज्यूमे में, तो ये नहीं होना चाहिए। इससे क्या दिखता है कि इसने डालने के लिए से डाल दिया है बट इसको पता नहीं कि उसके पीछे क्या उसने किया है, राइट। सो दिस शुड नॉट हैपन। एवरीथिंग व्हिच यू आर मेंशनिंग अंडर प्रोफेशनल अकम्पलिशमेंट और सर्टिफिकेशन भी है बहुत सारी चीज़ें। अब जैसे आप लोगों ने यहाँ पे मेरे हिसाब से अलग अलग लीडरशिप प्रोग्राम्स वगैरह किए, तो उसमें से एक क्वेश्चन बन सकता है कि अगर आपने PSK में लीडरशिप प्रोग्राम किए तो आपने क्या सीखा और उसने आपने आपके रोल में अप्लाई किया नहीं किया। अब वहाँ पे आप ब्लैंक नहीं होने चाहिए, ठीक है। आपको आंसर कभी कभी प्रेजेंस ऑफ माइंड भी होना चाहिए, नहीं भी किया है तो थोड़ा सा ड्राफ्ट करके वहाँ पे बता दो, उसको फ्रेम करके थोड़ा सा सेंटेंस बता दो कि मैंने यहाँ पे इस तरीके से लीडरशिप किया है। आपने नहीं किया बट आपको पता कि आपकी टीम में मेरा जो कलीग था वो कर रहा था, तो वो किस तरीके से लीडरशिप इनिशिएटिव ले रहा था, आपने तो ऑब्जर्व किया होगा ना, कल जाके आपको भी लीडर बनना है तो आप वो कोट कर दो। मैं ऐसे नहीं बोलूँ कि आप झूठ बोल रहे हो, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि आप उसको फ्रेम करके सामने वाले को प्रेजेंट बता रहा हूँ, वहाँ पे ब्लैंक नहीं रह रहे। फिर क्या रहेगा, सिर्फ लीडरशिप का मैंने सर्टिफिकेशन किया, सेशन किया, बट मैंने कुछ यूटिलाइज नहीं किया, नो यूज, राइट। तो वो फिर मेंशन ही नहीं करना चाहिए, उसके थॉट दिमाग में ये प्रोसेस थॉट आता है, ठीक है। प्लस जैसे कि अगर मैंने कोई बड़े टेक्निकल सर्टिफिकेशंस की है, जैसे कि AWS के बहुत से लोग करते हैं, पाइथन जावा के करते हैं, राइट, उसको मेंशन करो वहाँ पे। अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी के टाइम पे हैकेथॉन वगैरह में पार्टिसिपेट किया था तो उसको भी मेंशन करो वहाँ पे, और कुछ अलग बहुत आपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी किया है यहाँ पर तो वो भी आप अपने अकम्पलिशमेंट्स में या फिर अचीवमेंट्स में मेंशन कर सकते हो, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट है? लैंग्वेजेस नोन, अभी बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ कि लैंग्वेज में वो लोग प्रॉपरली स्पेसिफाई नहीं करते कि उनकी फ्लुएंसी क्या है, ठीक है। टॉप ऑर्डर में हमेशा इंग्लिश होना चाहिए, हिंदी, मराठी, या फिर मैं बोलता हूँ होना चाहिए आपकी जो भी मदर टंग है, बट वो सबसे आगे होनी चाहिए। प्रायोरिटी शुड बी योर इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। हाँ, इसमें एक और चीज़ मैं आपको पूछ रहा हूँ, इसमें नहीं भेजती, टेक्निकल स्किल्स में। टेक्निकल स्किल्स में कितनों को लगता है कि अपनी स्किल्स को रेटिंग देनी चाहिए? बहुत से लोग मैं देखता हूँ, मतलब आप लोगों की रेज्यूमे में मुझे नहीं देखा, बट जब मैं पुरानी कंपनी में था तो मैं देखा था कि अडोबी फोटोशॉप पे वो लोग रेटिंग देते हैं, एक बार दे देते हैं कितना आता है ना, ये कितनों को लगता है देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? नहीं लगता है नहीं देना चाहिए? दैट इज ऑल्सो वैलिड पॉइंट। आप लोग सोचो, मैं बाद में आपको बताऊंगा जब मैं दूसरा रिज्यूम आपको दिखाऊंगा तब आप मुझे आंसर करना कि टेक्निकल स्किल्स को रेटिंग देना चाहिए नहीं देना चाहिए, ठीक है। पर्सनल डिटेल्स, क्या क्या होना चाहिए पर्सनल डिटेल्स में? डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, परमानेंट एड्रेस। डेट ऑफ बर्थ एक फॉर्मेट प्रॉपर उसका होना चाहिए, ठीक है।
जब भी आप अपना डेट ऑफ बर्थ डाल रहे हो, कॉन्टैक्ट डिटेल्स में अगेन यहाँ पे सी बहुत सी बार आप लोग मिस कर देते ऊपर नंबर डालना, ठीक है? तो आपको वहाँ नीचे डालना है एटलीस्ट, जो ऊपर ही डालना चाहिए हमें। अगर वहाँ नहीं डाला है तो आप जो है नीचे भी अपने कॉन्टैक्ट नंबर और ऑल्टरनेटिव नंबर डाल सकते हो। बहुत सी बार क्या होता है कि हमारा वो नंबर रीचेबल नहीं रहता है। अगर आपने ऑल्टरनेटिव नंबर नीचे दे के रखा है पर्सनल डिटेल्स में तो इट्स गुड, दे कैन रेफर टू दैट नंबर, ठीक है? प्लस आपका परमानेंट एड्रेस या फिर करंट एड्रेस व्हिचएवर यू वांट यू कैन मेंशन इट ओवर देयर। सिटी भी आपको होना चाहिए, पिन कोड भी होना चाहिए। और कुछ चीज़ें आपको लगती है जो मिस आउट हो गई है यहाँ पे पर्सनल डिटेल में जो होनी चाहिए? सोशल मीडिया अकाउंट्स नहीं, मतलब बेसिकली कौन सा अकाउंट नहीं, वो तो ऊपर ही आता है। और कुछ होना चाहिए? पासपोर्ट नंबर इज एप्लीकेबल। कि अगर आपका कुछ जॉब रोल ऐसा है कि जिसमें आपको ट्रैवल करना है, इंटरनेशनल ट्रैवल इंक्लूड हो रहा है, या फिर आपको वर्क ऑथराइजेशन चाहिए, ठीक है, फॉर वर्किंग समवेयर आउटसाइड इंडिया, तो उस केस में आपको पासपोर्ट नंबर आना ज़रूरी है। जनरली आप जब यूएस शिप वगैरह के लिए कोई ऐसी कंपनी में काम करते हो, कोई इंटरनेशनल कंपनी है जहाँ पे यूके शिप यूएस शिप, तो हो सकता है कि वो लोगों को कल आपको वहाँ पे बुलाना हो किसी क्लाइंट से मिलने के लिए, प्रोजेक्ट के लिए, तो उस केस में आपका पासपोर्ट नंबर उस कंपनी के इसमें जब आप अप्लाई कर रहे हो उस कंपनी के लिए तो होना चाहिए, ठीक है? यहाँ तक सबको समझ में आया सब चीज़ें? किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है? सबने कुछ नोट किया होगा? कोई फिर भी कोई डाउट नहीं? कुछ नहीं? सर जैसे मैं अप्लाई कर रही हूँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए, जैसे 2 मंथ्स हो गए ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखे हुए, तो उसमें अचीवमेंट्स और सर्टिफिकेशंस में क्या ऐड करना है? सी सर्टिफिकेशंस में अगर आपने कुछ सर्टिफिकेशंस किए हैं, ठीक है, फ्लफ नहीं रखना हमें। अगर हमने कुछ किया है तो ही हमें देना है, नहीं किया तो मत दो, ठीक है? इट्स गुड। और अचीवमेंट्स में ज़रूरी नहीं है कि आपके 2 महीने में कुछ ना कुछ बड़े अचीवमेंट्स हो गया, तो बस आपने काम करना स्टार्ट किया। और प्रोफेशनल अचीवमेंट्स ही ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, मैंने कहा आपके अकेडमिक्स के भी हो सकते हैं, ठीक है, आपके दूसरे ऐसे कोई अचीवमेंट जिसमें आपकी दूसरी क्वालिटीज़ जो पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो रिफ्लेक्ट हो रही है, तो आप वो भी डाल सकते हो। जस्ट दैट यू शुड बी इन अ पोजीशन टू जस्टिफाई टू द इंटरव्यूअर, देन ओनली यू शुड मेंशन इट, अदरवाइज डू नॉट मेंशन, ठीक है? व्हाट एल्स? एनीवन? हाँ, मैं उस पर आने वाला था, वो डोंट्स में आता है, जेंडर मेंशन नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है? और कोई कुछ नहीं? और मोबाइल सर कुछ लोग मैरिड अनमैरिड वाला मेंशन तब वो डोंट्स में आएगा, मैरिटल स्टेटस। एटीएस कीवर्ड्स आप लोगों को मेरे हिसाब से एआई टूल्स रहते हैं जिसमें से आप लोग जॉब डिस्क्रिप्शन उसमें डाल दो, वो जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है उसमें से वो निकाल के आपको दे देगा कि ये कीवर्ड्स बार बार कॉमनली यूज हो रहे हैं, तो इसको आप अपने रेज्यूमे में डाल सकते हो। तो आप लोग यू आर स्मार्ट इनफ टू यूज दोज थिंग्स, तो आप लोग एआई टूल सर्च करो और उसके हिसाब से जेडी में से सारे कीवर्ड्स निकाल के फिर उसको अपने रेज्यूमे में बना लो। ऑल गुड? अचीवमेंट्स के अंदर ही सर्टिफिकेशन हम लिख सकते हैं या सर्टिफिकेशन नहीं, सर्टिफिकेशन अलग रहेगा, अचीवमेंट्स अलग रहेगा, ठीक है? दोज टू थिंग्स आर डिफरेंट, ठीक है? उसको आप एक साथ नहीं डाल सकते। और कोई? सर मैक्सिमम कितने पेजेस का रिज्यूम होना चाहिए? गुड क्वेश्चन। मैक्सिमम आपका 1 पेज का ही होना चाहिए, ठीक है? एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आपको एक में ही सब कुछ मैनेज करना है। मैं अभी आपको जो एक रिज्यूम बनाऊंगा आखिरी में, आपको चौक जाओगे कि वो बंदे ने एक पेज में कितना प्रिसाइजली सारी चीज़ें मेंशन की है। कोई ज़रूरत नहीं आप 2 पेज 1.5 पेज में लेकर जाओ, कीप इट अप टू 1 पेज। वाई? बिकॉज रिक्रूटर के पास 300 से ज़्यादा रिज्यूम आएंगे, इतने सारे एप्लीकेशन आएंगे, उसमें वो सारी चीज़ें अगर आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें दूसरे पेज में है तो यू विल मिस एन अपॉर्चुनिटी। बेटर टू कीप एवरीथिंग ऑन दी फर्स्ट पेज, उसको इतने अच्छे तरीके से अलाइन करो कि क्लियरली विजिबल भी हो और अंडरस्टैंडेबल भी हो, ठीक है? एनीथिंग एल्स? नो? वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स मेंशन करना जरूरी नहीं करना चाहिए, मत करिए, वो तो आपको पूछते तब मेंशन करिए ना, ठीक है? एज अ फ्रेशर एज वेल, मतलब लोग क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ, मेंटालिटी क्या रहती है, मैं फ्रेशर हूँ, मेरे पास तो ज़्यादा कुछ लिखने के लिए नहीं है, तो वो कुछ भी डाल देते हैं। वैसा नहीं करना हमें। मैंने कहा यू आर ट्राइंग टू सेल योरसेल्फ, यू आर शोकेसिंग योर पर्सनालिटी एंड सी फर्स्ट इंप्रेशन ऑलवेज काउंट। जैसे मैंने आपको कहा, अगर आप पहली इंप्रेशन ही ऐसा बता रहे हो कि 10 वीकनेसेस, अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन डालते रहे हो, तो कोई
सेंस नहीं बनता। उससे क्या लगता है कि मैच्योरिटी लेवल जो पर्सन का वो थोड़ा सा कम है, ठीक है, वो नहीं दिखाना है। ठीक है, डोंट्स मैं देखो वो भूल गया, दूसरा डोंट वाला बात कराना था उस साइड में, तो इसमें से बता रहा हूँ। ठीक है, डोंट्स में सबसे पहला है एरर फ्री, जिसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स, ग्रामर, करेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि कॉन्टैक्ट नंबर गलत आते हैं, 1 0 नहीं रहता है, 1 नंबर नहीं रहता है, राइट। प्रॉपर जैसे हम लोग देखते हैं ना +91 या फिर उसके बाद पूरा नंबर लिखा 10 डिजिट लिखे, तो आप एक देख लीजिए ऑनलाइन की सबसे आइडियल फॉर्मेट क्या है कॉन्टैक्ट नंबर डालने का, और वही फॉर्मेट आपको यूज़ करना है। प्लस जो इनिशियल ईयर्स ऑफ करियर में रहते हैं, जैसे कि जो ब्रैड्स रहते हैं, जो अपन के लोग हमारी उम्र के जो लोग रहते हैं, जैसे आप सब है, उनको आदत बहुत रहती है कि नंबर जल्दी चेंज करते हैं, जल्दी देखा जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए। आप ऑल्टरनेटिव नंबर डालो, ठीक है, या फिर आप एक प्रोफेशनल नंबर को जो आप कभी बदलने नहीं वाले, अगर आप बदल रहे हो तो उसको अपडेट करो तुरंत अपने रेज्यूम में, ठीक है। एक चीज़ होनी चाहिए, स्पेलिंग एरर नहीं होने चाहिए, ग्रामेटिकल एरर नहीं होने चाहिए, ठीक है। ग्रामेटिकल एरर आप लोग समझते हो क्या क्या होना चाहिए उसमें, तो आप लोग थोड़ा उस पर भी ध्यान दीजिएगा। और स्पेलिंग में आपका नाम, आपका बाकी सारी जो डिटेल्स है, अगर वो प्रॉपरली नहीं रहती है, स्पेलिंग एरर आती है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कैजुअल अप्रोच दिखेगा, ठीक है। रिक्रूटर को क्या लगेगा कि पहले ही इसने अपने रेज्यूम को प्रॉपरली क्रिएट नहीं किया, स्पेलिंग चेक नहीं किया, प्रूफ रीडिंग नहीं की है, ठीक है। तो उसकी थॉट प्रोसेस क्या रहेगी, यू माइट नॉट बी वैल्यूइंग दी थिंग्स। आपने रेज्यूमे को उतना अच्छा नहीं बनाया तो आप काम को कैसे अच्छा करोगे, क्योंकि आपका रेज्यूम जब तक शॉर्टलिस्ट नहीं होगा तब तक आप जॉब नहीं करोगे, राइट। तो स्पेलिंग एरर्स नहीं होने चाहिए, उसका आपको ध्यान रखना है। प्रूफ रीडिंग करो, प्रूफ रीडिंग में आप 2-3 बार रखो। प्लस कभी कभी क्या होता है कि हमारी आइज़ जो है ना वो गलतियों को कैच नहीं कर पाती है, तो आप अपने मेंटोर से, अपने फ्रेंड से, जो भी कलीग है उससे वापस आई चेक कराओ, मतलब उनसे चेकअप कराओ कि भाई मेरा जो पूरा रेज्यूम है वो थरो है कि नहीं। फ्रेश आइज़ बहुत सी बार क्या होती है कैच कर लेती है गलतियों को, वो चीज़ें भी आपको करना है। नेक्स्ट है लेंथी रेज्यूम, जैसा मैंने आपको कहा लेंथी रेज्यूम नहीं रखना है, ठीक है, अननेसेसरी चीज़ें मेंशन नहीं करना है, 1 पेज का ही रखना है हमें। डू नॉट कॉम्प्लिकेट अननेसेसरीली। कॉम्प्लिकेशन कैसे कैसे होते हैं, कैसे लोग कॉम्प्लिकेट करते हैं रेज्यूम को, प्रॉपर्ली हम देख नहीं पाए ईयर रेज्यूम, सेक्शंस यहाँ वहाँ है, ठीक है, ऊपर जो चीज़ दी थी उसी से कोई बाकी की चीज़ नीचे दिख रही है, ठीक है। ऊपर आपने कोई प्रोजेक्ट के बारे में बात किया तो जो आधा अधूरा था, लेकिन एकदम नीचे देख रहा हूँ तो उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है, ठीक है। तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पीएस की टेक्नोलॉजीज एक बार ले गए, वापस दूसरी बार आ गया, उसके बाद उसका एलाबोरेशन है, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी वेरी मच कंसाइज, प्रिसाइज एंड इजीली अंडरस्टैंडेबल। अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन डाल के आप अपना चांस ही मिस कर रहे हो, ठीक है। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, इट्स नो इशूज़, कीप वाइट स्पेसेस, बट जो भी चीज़ आप मेंशन कर रहे हो एकदम क्लियर और क्रिस्प रखो, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक है वहाँ पे, कास्ट, CAST, कास्ट डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए। यू ऑल आर अप्लाइंग फॉर प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर में अप्लाई करते तो अलग बात होती है, प्राइवेट सेक्टर में उसका कोई रोल कॉल नहीं करता है, तो अननेसेसरीली कास्ट वहाँ पे मेंशन मत करो। सिमिलरली जेंडर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इन द मोस्ट केसेस जेंडर मेंशन करना जरूरी नहीं है। कुछ स्पेशल केस रहते हैं जहाँ पे जेंडर मेंशन करना जरूरी है। कैसे, जैसे मैं आपको बताऊँ, बहुत से ऐसे नाम्स है जो कि लड़कों में भी यूज होते हैं और लड़कियों में भी यूज होते हैं, राइट। जैसे कि नेहल है, बहुत से लोग निहाल भी बोलते हैं, NEHL, और नेहल भी बोलते हैं, तो उस केस में आपका जेंडर क्या है उसके हिसाब से आपको वहाँ पे स्पेसिफाई करना जरूर है। जैसे ही शीतल रहता है, राइट, राज, मतलब ऐसे बहुत सारे नाम हैं, तो अगर आपके नाम उस टाइप से है तो उसको आप अलग से स्पेसिफाई करो बाय मेंशनिंग द जेंडर इन योर पर्सनल डिटेल, ठीक है। कॉपी पेस्ट नहीं करना है। कॉपी पेस्ट करने में मैं बहुत से बार देखता हूँ लोग फॉन्ट जो है वो भी कॉपी कर देते हैं, बीच में लिख के आ जाता है रेफर टू दिस पेज, है ना। ये सारी चीज़ें हमने स्कूल में भी की है, राइट, तो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप प्रूफ रीडिंग नहीं करते हो, आप कॉपी पेस्ट कर देते हो और फिर वो गलतियाँ वहाँ पे हाईलाइट हो जाती है, तो दैट शुड नॉट हैपन, ठीक है। प्लस फादर्स ऑक्यूपेशन मेंशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? फादर को दिखाना चाहते हैं कि हम वाला क्या करते हैं। हाँ, सी अभी इसमें भी अलग अलग सिनारियोज है। अब जैसे किसी के पापा कलेक्टर है, वो पे मेंशन कर रहा है फादर ऑक्यूपेशन कलेक्टर, तो सामने वाला पहले ही डर जाएगा, स्कूल में
पिक्चर आ गया, ठीक है। अगर आपके पापा पुलिस में भी है तो आप सर्विस लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपके पापा बिजनेस है, बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन लिख सकते हो, ठीक है। बहुत सी कंपनी जैसे रिक्रूटर्स पे डिपेंड करता है, अगर जैसे कि जो टीचर्स है, प्रोफेसर्स है, तो उनका अलग ही माइंडसेट रहता है। मतलब जब उनके फादर्स ऑक्यूपेशन में प्रोफेसर टीचर लिखा रहता है तो लगता है कि इनकी अपब्रिंगिंग उस हिसाब से रहेगी, थोड़े से शिष्टाचार रहेंगे, संस्कार ज़्यादा रहेंगे, डिसिप्लिन रहेंगे, रहते हैं हम लोग देखते हैं ऐसे लोगों को, तो वो प्रोफेशन आप उस केस में डाल सकते हो। बहुत सी बार कंपनी ऐसा भी सोचती है कि फादर ऑक्यूपेशन डाला है तो मतलब कहना क्या जाता है, पापा का ऑक्यूपेशन से हम क्या करेंगे, हमको तो तुमसे मतलब है ना, व्हाई आर यू मेंशनिंग योर फादर्स ऑक्यूपेशन। मेंटालिटी टू मेंटालिटी डिपेंड करता है, इट्स ऑप्शनल, इन मोस्ट केसेस इट इज़ नॉट नेसेसरी टू मेंशन फादर्स ऑक्यूपेशन, बट समटाइम्स इफ यू फील कि आपके पापा का जो प्रोफेशन है वो थोड़ा सा अच्छा है तो देन इन दैट केस यू कैन मेंशन, ठीक है। सेल्फी फोटोज और वन साइडेड फोटोज नहीं डाले आप लोगों को, चलो मैंने देखा है बहुत से लोग ऐसे नहीं डाले, वरना आउट करते हुए अलग से साइड लुक दे रहे हैं, हाँ किसी फंक्शन में गए तो क्रॉप कर दिया, हाथ आधा ऐसा दिख रहा है, ठीक है। बैकग्राउंड में आप शादी के किसी माहौल में और पीछे का बैकग्राउंड दिख रहा है, तो ऐसा सब नहीं होना चाहिए। बीजी चेंज करके भी एक मेरे सबसे वेबसाइट है, राइट, तो हाँ बैकग्राउंड चेंज करके तो वो आप यूज़ करो। जैसे आपके बहुत सारे जो PHP के आपके हैं जो आप लोगों ने अपलोड किया है, तो आप उस पर बैकग्राउंड चेंज करके डालो, ठीक है। आई कार्ड हो ना हो इट्स ओके, ठीक है, बट आपका जो हेडशॉट आना चाहिए प्रॉपरली, ठीक है, उस हिसाब से फोटो होने चाहिए, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। प्लस एक और चीज़ जैसे मैंने बताया, फोटोज डाल रहे हो तो कलर प्रिंट आउट, ठीक है। नेक्स्ट इज फॉल्सिफिकेशन, सी इट्स अ पार्ट ऑफ इंटीग्रिटी। आई एम नॉट सेइंग कि आपको जो है चीज़ें जो है थोड़ा सा घूम करके डालनी नहीं है, आपको डालनी है, बट एकदम ऐसी भी नहीं जिसका आप कुछ बोल ही ना पाओ। मैंने भी किया है, मतलब कुछ काम नहीं किए, बट जॉब डिस्क्रिप्शन में वो रिक्वायरमेंट था तो मैंने इनपुट किया, बट मैंने प्रिपेयर किया खुद को कि अगर मुझे वो क्वेश्चन पे कुछ शूट हुआ तो आई बी इन अ पोजीशन टू आंसर दोज थिंग्स, ठीक है। तो आपको वो पता रहना चाहिए कि आप क्या डाल रहे हो। प्लस कोई भी फेक इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी है अबाउट योर प्रोफेशन। आपने कहीं पे काम नहीं किया बट आपने वो डाल दिया है, ठीक है। प्लस आपका क्वालिफिकेशन वो नहीं और आपने डाल दिया, आपका बैकलॉग है, आपका भी क्वालिफिकेशन जो डिग्री कंप्लीट नहीं हुआ बट आपने पास दिखा दिया है, वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बड़ी कंपनीज में जब भी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा तो आपका एजुकेशन चेक, आपका एम्प्लॉयमेंट चेक, आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड, बहुत सारे चेक्स रहते हैं EGV के, वो सारे चेक होंगे, और उसमें अगर आपका रेड मार्क आया, नेगेटिव आया, तो आपका सीधा जॉब से निकाल दिया जाएगा विदाउट आस्किंग एनीथिंग, वो आप लोग को निकाल देंगे जॉब से और वो परमानेंट हो जाएगा फिर, ये बात याद रखिए, ठीक है। वो चीज़ों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट नोट्स। इसके अलावा आप लोगों को कुछ लगता है जो होना चाहिए नहीं होना चाहिए, जिस पर आपको कोई क्वेश्चन हो? आप लोग जैसे पूछ रहे थे सर ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो एनी क्वेश्चन दैट यू माइट बी हैविंग। कुछ नहीं, इतनी सारी चीज़ें देखी, इसमें से कुछ नहीं। अगर आपको सारी चीज़ें क्लियर है, आर यू श्योर? I'll just show you two data. Candidate milligram. Basically, I was trying to show you. I'm not a tech savvy.
सर करना क्या पड़ता है? सर आपका ऑप्शन रहता है मीन्स डिस्प्ले को मर्ज करवाते हैं सर। अच्छा, थैंक यू सो मच। Yes, taught me new thing today. Okay, so this is a data which shows candidates who include a robust LinkedIn profile on their resume have a 71% higher chance of landing an interview. क्यों ऐसा? क्यों ऐसा लगता है आपको? And specifically सी एंट्री लेवल में सबसे ज़्यादा रहता है। See, resume is just a concise or an overview about your skill sets, about your experiences, work and everything. But comprehensive way में आपका LinkedIn नहीं बताता है। मैंने क्या कहा? आप लोग सिर्फ बुलेट पॉइंट्स में आपको चीज़ें मेंशन करोगे जो आपने की है, पर उसको डिस्क्राइब कहाँ पे होगा? LinkedIn में होगा। जैसे मैं LinkedIn में जाता हूँ आपने क्या क्या एक्टिविटीज़ की है, आपने क्या क्या सर्टिफिकेशंस की है, आपने कौन कौन से काम किए, आपने क्या क्या अचीवमेंट्स है, वो सारा सब कुछ मुझे आपका बैकग्राउंड LinkedIn से मिल जाता है। दैट इज़ द रीज़न जो बड़ी कंपनीज के रिक्रूटर रहते हैं, अगर आप लोगों ने देखा होगा, वो आपके LinkedIn में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि अगर जब तक आप LinkedIn में एक्टिव नहीं रहोगे तब तक आप अलग से दिखोगे नहीं, राइट? तो व्हाट इज गोइंग टू कीप यू आइसोलेटेड फ्रॉम दैट क्राउड हु इज वेरी मच जेनरिक? LinkedIn, ठीक है? LinkedIn में एक्टिव रहिए, आप जो भी काम कर रहे हो वहाँ पे शोकेस करिए, जो भी सर्टिफिकेशन कर रहे हो आप शोकेस करिए, उससे पता चलता है कि द पर्सन इज वेरी मच एक्टिव। आप PSK में भी जो सारी चीज़ें करते हो आप शो कर सकते हो। आपने जो भी हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट किया वहाँ पे आपकी लर्निंग्स क्या थी, की लर्निंग्स क्या थी, यहाँ पे आपकी क्या की लर्निंग्स है। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था जो भी टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हो उसमें क्या ट्रेंड्स आ रहे हैं, राइट? जो कुछ भी आपने उसमें सीखा वो वहाँ पे आप पोस्ट में लिखो। ChatGPT का भले यूज़ करो बट मेंशन दोज थिंग्स ओवर देयर दैट विल कीप यू हाईलाइटेड फ्रॉम द अदर्स, ठीक है? % of resumes include fewer than 3 instances of quantifiable results. जैसे कि आपने देखा सिर्फ शारदा केस में थोड़ी बहुत क्वांटिफाई मैट्रिक्स थे, बाकी किसी में नहीं थे। ग्राफ भी वही बता रहा है। जब भी आपकी ये सिचुएशन रहेगी तब चांसेस ज़्यादा है कि आपका रिज्यूम जो है हटके नहीं दिखने वाला है। इट इज़ स्लाइटली इट इज़ देयर सिचुएशन में भी देयर कि मतलब आपका रिज्यूमे वो कॉमन जो भी एप्लीकेंट्स उनकी जैसे ही रहने वाला है, हटके आपको नहीं दिखेगा। तो यू हैव टू मेक श्योर दैट मैट्रिक्स जो भी परसेंटेजेस है, जो भी नंबर्स है, वो सारे आपके रेज्यूमे हो, ठीक है? जो मैंने XYZ को बुलेट फॉर्मूला जो बताया था उसको आप फॉलो करो, ठीक है? हाँ, ठीक है आपको ये रेज्यूम। So this is the resume of a person whose resume was shortlisted for Google, Microsoft, बड़ी-बड़ी कंपनीज में इनका रेज्यूम जो है शॉर्टलिस्ट हुआ था। You can clearly see सिर्फ एक पेज का रेज्यूम है। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ। नेम इन बोल्ड, ठीक है, मैंने उसको ब्लर किया है। ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, गिटहब, लिंक्डइन प्रोफाइल, क्लियर, ठीक है? स्किल्स सबसे ऊपर है। द गुड पार्ट, लैंग्वेजेस एंड टेक्नोलॉजीज एंड टूल्स। दिख रहा है किसी के रेज्यूमे आप में से ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप सारे टेक्निकल पर्सन हो बट नो वन हैज मेंशन्ड दीस क्लियर स्किल्स। ये सारा वो चीज़ें करता होगा और प्लस उसमें जो उसकी ज़्यादा सबसे ज़्यादा प्रोफिशिएंसी है। अभी आप लोग पूछ रहे थे कि ETS क्या करता है, ETS ये कीवर्ड्स देखता है, ठीक है? तो आपको ये चीज़ें करना है, आपके रेज्यूमे ये सारे अपडेट्स लाना है। अब मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि आपको आपकी स्किल्स को रेटिंग देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, सोचा किसी ने कुछ? नहीं देनी चाहिए। कितने लोगों को लगता है देनी चाहिए? हाथों पर? अरे अभी तो बोलो क्लियरली, बी कॉन्फिडेंट। देनी चाहिए तो देनी चाहिए। योर ओपिनियंस डज मैटर। और कितनों को लगता है नहीं देनी चाहिए? बाकी को क्या लगता है? तो क्लियरली ऊपर देखिए ना, कितनों को लगता है नहीं देनी चाहिए और कितनों को लगता है देनी चाहिए? इन सबको लगता है देनी चाहिए। अभी दोनों मुझे बताइए, जो बोल रहा है देनी चाहिए क्यों देनी चाहिए और जो बोल रहा है नहीं देनी चाहिए तो क्यों नहीं देनी चाहिए? प्लीज टेल, क्यों देनी चाहिए? व्हाई शुड वी रेट आवर टेक्निकल स्किल्स? ठीक है, क्या क्या स्किल्स नहीं, क्या क्या स्किल्स है वो तो हमने मेंशन कर दिया, बट रेटिंग से क्या पता चलेगा? कॉन्फिडेंस। अच्छा, मैं एक इंस्टेंस बता रहा हूँ आपको। से फॉर एग्जांपल यू हैव रेटेड योर टेक्निकल कॉम्पिटेंसी, ठीक है? द टेक्निकल कॉम्पिटेंसी विच यू हैव रेटेड इज एवरेज, मॉडरेट है। द पर्सन हु वाज द रिक्रूटर और द टेक्निकल पर्सन हु वाज लुकिंग फॉर दोज कॉम्पिटेंसीज, उनके लिए वो कॉम्पिटेंसी ज़्यादा थी, उनको फुल चाहिए था। दे वांटेड
the person should be fully competent enough for that particular technology. But अब आप एक्चुअली में जो आपको टेक्निकल कॉम्पिटेंसी लेवल जो आप पजेस करते थे एक्चुअल में वो इनफ था, बट आपने एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दी बाय कीपिंग इट एज मॉडरेट. ठीक है, सी दैट इज द पॉइंट. अगर आप उसको रेट कर रहे हो तो हो सकता है कि आपने मॉडरेट एंड लो किया हो, लेकिन जो एक्चुअल में आपको पजेस करते थे वो उनके लिए इनफ था. सो यू आर मिसिंग एन अपॉर्चुनिटी, राइट. वहाँ पे आपका सीवी शॉर्टलिस्ट नहीं होगा. दूसरा पॉइंट, अगर आप वहाँ पे मेंशन नहीं कर रहे हो, दैट्स अ गुड पार्ट. क्यों? बिकॉज वी आर नॉट दैट ग्रेट एट वैलिडेटिंग समथिंग ऑन आवर ओन. मैं इस टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा हूँ, मैं खुद से वैलिडेट कर सकता हूँ क्या? until unless my senior और mentor is actually able to see कि नहीं ये अगर पाइथन लिख रहा है तो उसको पाइथन में अच्छा काम आता है और पाइथन में इसको सब कुछ आता है, इज टेक्निकली कॉम्पिटेंट इनफ टू वर्क ऑन पाइथन. ही कैन वैलिडेट बट आई कैन नॉट वैलिडेट ऑन माई सेल्फ. सो दैट इज द पॉइंट. यू शुड नेवर रेट योर टेक्निकल स्किल्स ऑन योर रिज्यूम. ठीक है. नेक्स्ट इज सी वर्क एक्सपीरियंस. जो करंट है प्रेजेंट है उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है. He has clearly mentioned the company's name, location and the job title. Next you can see 3-4 पॉइंट में उन्होंने क्लियर पूरा उनका डिस्क्रिप्शन दे दिया है रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज का, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज में वो प्रीडोमिनेटली काम कर रहा है, सब कुछ मेंशन है. प्लस आखिरी में उन्होंने वापस से मेंशन किया है जो टेक्नोलॉजीज पे इस कंपनी में उन्होंने काम किया है. परसेंटेजेस भी है यहाँ पे. यू कैन सी reduce the cost involved in running custom report service by more than 80%. By what? By devising an automated system that identified and disabled reports with no usage or empty data. वो XYZ आपको भी वही करना है. ठीक है, इस तरीके से आपको करना है. प्लस वन मोर उसने एक्शन वर्ब यूज किया है, लेड, रिड्यूस, लेड. ठीक है. सो दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू डू इन योर रिज्यूम एज वेल. नेक्स्ट अप एजुकेशन. विच हैदराबाद, टेन्योर, CGPA, क्वालिफिकेशन, डिग्री किसमें, सब कुछ क्लियरली मेंशन्ड है. प्लस उसने क्या मेंशन किया, रिलेवेंट कोर्स वर्क. अब आपके कोई पब्लिकेशन रहते हैं, रिसर्च वर्क रहता है, जब आप अकेडमिक्स में रहते हो तो आप वो वहाँ पे हाईलाइट कर सकते हो जो इन्होंने यहाँ पे हाईलाइट किया है. ठीक है. प्रोजेक्ट वर्क, उनकी जितने भी रिलेवेंट प्रोजेक्ट वर्क होंगे उन्होंने यहाँ पे हाईलाइट किए और कब किए वो भी उन्होंने मेंशन किया. 2015 में वर्ड लुकअप डिक्शनरी, अल्टरनेटिव रूट्स इन न्यूरल नेटवर्क्स, ये सारे प्रोजेक्ट्स उन्होंने मेंशन किए. प्लस जो टेक्नोलॉजीज उन्होंने यूज़ की है, यूज टीम का प्लस OpenGL जो कुछ भी है वो सारी में चीज़ें टेक्निकल स्किल्स वहाँ पे मेंशन की है. तो दिस इज हाउ एक्चुअली यू आर सपोज टू क्रिएट अ रिज्यूम. अगर अब ये रिज्यूम शॉर्टलिस्ट हो सकता है गूगल के लिए, माइक्रोसॉफ्ट के लिए, तो आपके रिज्यूम भी होने चाहिए. बट कब होंगे, जब आप रिलेवेंसी टॉप नॉच रखोगे, जब आप रिलेवेंट चीज़ें ऐड करते रहोगे जिसका कोई महत्व नहीं और जो चीज़ आप बोल नहीं पा रहे हो. अब वो ये सारे पॉइंट्स पे बोल पाया होगा बिकॉज ही इज वेरी मच थरो विद दीज थिंग्स. So you have to question yourself before inputting those things into your resume that whether I am in a position to justify those things or not to the recruiter or to the interviewer. ठीक है, समझ में आया सबको? कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है? Anything else? सर इसमें जो स्किल्स लिखी है लेकिन ऑब्जेक्टिव नहीं लिखा है. सी मैं वही बता रहा हूँ, अब उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, उसको हाईलाइट क्या करना था. मेरे जो टेक्निकल पार्ट है जो रिलेवेंट ज़्यादा है उनको हाईलाइट करना था. और मैंने कहा था यू हैव जस्ट वन पेज. आप उसको कैसे यूटिलाइज करना है सब टू. स्टार्टिंग में भी जब मैंने आपको एक्टिविटी दी मैंने आपको फ्री रखा था कि आपको जैसे यूटिलाइज करना आपको करना है. बहुत से लोगों ने सोचा कि मेरे दिमाग में ये तो मैंने उस हिसाब से करना है और बाकी को लगा ऐसा है तो वैसा है. बट आपको ये भी सोचना है कि उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस वाला पार्ट कौन सा है, ज़्यादा रेलेवेंट वाला पार्ट कौन सा है. ठीक है. जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है और मैंने क्या क्या चीज़ें डाली है. अगर जॉब डिस्क्रिप्शन वाली चीज़ें आपने सारी आती है, उसके बाद कुछ स्पेस बच रही है और आपके पास रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन अभी है तो इनपुट करो, नहीं है तो छोड़ दो. ऑब्जेक्टिव तो मैंने आपको बताया कि आप एक लाइन में भी डाल सकते हो. ठीक है, तो आप वो डाल सकते हो. अभी इनके पास 3-4 एक्सपीरियंसेस थे, दैट इज द रीजन उन्होंने ऑब्जेक्टिव मिस कर दिया. ठीक है. और कुछ सर क्या आप रिज्यूम शेयर कर सकते हैं फॉर रेफरेंस? हाँ ठीक है, मैं रिज्यूम शेयर करूँगा. और कोई क्वेश्चन? अभी तो बहुत सारी चीज़ें हमने देखी. मेरे हिसाब से आपके दिमाग में क्वेश्चन आने चाहिए. इस हिसाब से आपने रेज्यूम बनाया तो आपने कुछ सोच समझ के बनाए होंगे. तो आपका थॉट प्रोसेस क्या था
और वो थॉट प्रोसेस जो अभी हमने सेशन लिया उसमें आप कहाँ डेविएट हुए वो आपको समझ में आया होगा ना। तो उसमें से कोई क्वेश्चन अराइज नहीं हो रहे? चलो 5 मिनट आप लोगों के पास है, एक बार आप सारे अपने जो हाथ में रिज्यूम है, ठीक है, जो भी रिज्यूम आपके हाथ में देख लो, कोई क्वेश्चन दिमाग में आता है, देन विल गिव दिस 5 to 10 minutes of Q&A सेशन। अच्छा, मैं 3 आपको गोल्डन क्वेश्चंस दे रहा हूँ जो आपके वर्क एक्सपीरियंस में मतलब आपको उसके आंसर्स लिखने हैं, नोट करिए आप लोग। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड यू डू? सेकंड इज हाउ डिड यू डू? एंड थर्ड इज व्हाट वाज द इम्पैक्ट? ये चीजें आपको आपके वर्क एक्सपीरियंस में आप डाल सकते हो। अभी बहुत से आप लोग ऐसे ही रोल्स में जाओगे जो कि डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं कर रहा होगा कंपनी के सेल्स या रेवेन्यू या ग्रोथ में, ठीक है। तो उस केस में आप XYZ बुलेट फॉर्मूला कैसे यूज़ कर सकते हो? जैसे मान के चलिए कि मैं ऐसे रोल में हूँ जो कि सिर्फ सपोर्ट कर रहा है इंटरनल टूल को, जो इंटरनल टूल्स रहते हैं कंपनी के, उसमें जो भी मॉडिफिकेशन करने हैं, चेंजेस करने हैं, तो मैं उसमें सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ में। तो मैं उस केस में किस तरीके से मेंशन कर सकता हूँ कि माई कॉन्ट्रीब्यूशन लेड टू 33% XYZ% इम्प्रूवमेंट इन द सेल्स टीम्स परफॉर्मेंस विच ट्रांसलेटेड इनटू, उनने जो अचीवमेंट लिए मतलब X अमाउंट हमारी कंपनी ने अचीव किया, ठीक है। तो देखा आपने, आप भले ही उस रोल में जो डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहा है कंपनी के ग्रोथ रेवेन्यू को, बट यू हैव ड्राफ्टेड इट सच वे कि सामने वाले को आपका कंट्रीब्यूशन समझ में आ रहा है, ठीक है। सो दैट इज आल्सो वन ऑफ द पॉइंट दैट यू शुड नो, बिकॉज आगे जाके आप लोग ऐसे पॉइंट ऐसे रोल में भी बैठोगे जहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा तो मेरा रोल क्या है, मेरी अचीवमेंट्स क्या है। भले आप सपोर्ट में हो, ट्रबल शूटिंग में हो, तो आपके अचीवमेंट्स क्या है, परसेंटेजेस में, नंबर्स में, वो आपको क्वांटिफाई करना आना चाहिए। तो आप उस केस में इस तरीके को यूज कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन क्वेरीज। इट्स नॉट लाइक दैट, अभी बाहर मार्केट में रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है, उसके ऊपर से रहता है। सी बहुत सी बार जब आपको लैटरल हायरिंग होती है तो जनरली को एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है। हाँ, अगर आप फ्रेशर अप्लाई कर रहे हो और आपका सीवी शॉर्टलिस्ट हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द सीवी दैट मैं क्रिएटेड, मैं बोल रहा हूँ अगर लैटरल हायरिंग हो रही है इस केस में और वहाँ पे रिक्वायरमेंट एक्सपीरियंस का है, बट आपने आपके इंटर्नशिप्स प्रोजेक्ट्स इतने अच्छे रखे कि जो रिक्रूटर था या फिर हायरिंग मैनेजर था उनको बहुत पसंद आया। मैंने क्या था, आपको मैंने रिज्यूमे जो स्टेजेस क्रॉस करता है प्रोसेस बताया, किसी को पता है कौन कौन सी स्टेजेस रहती है रिज्यूमे जो भी पड़ता है? फर्स्ट क्लास में बताया था, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस आर रिज्यूमे गोज थ्रू। सबसे पहले आप अप्लाई करते हो, सबसे पहले क्या होता है, ETS का स्क्रीनिंग होता है। ETS में फिल्टर आउट हो जाते हैं आपके सारे कीवर्ड्स के हिसाब से, जो भी रिलेवेंट चीज़ रहती है वो कैप्चर होती है और आपका रिज्यूम जो है शॉर्टलिस्ट होने के बाद जो परसेंटेजेस रहते हैं उसके कितना परसेंटेज अगर कैप्चर हो गया कीवर्ड्स तो फिर जाता है शॉर्टलिस्टिंग के लिए रिक्रूटर के पास। नाउ रिक्रूटर इन अ पोजीशन कंफर्म्स द बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक रिलेवेंसी। और रिक्रूटर का भी मैं बताता हूँ, माय एक्सपीरियंस
मैंने जब आईटी में काम किया था तो मैं सिर्फ देखता हूँ, मुझे टेक्निकल स्किल्स बताई गई थी। हम लोग उस टाइम पे सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन इंजीनियर देख रहे थे, तो मुझे बताया गया था कि Node.js देखना है आपको, सीक्वल देखना है आपको और पोस्टग्रेस देखना है आपको, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें मुझे दिखनी चाहिए और आपका जो सारा डिस्क्रिप्शन भी होना चाहिए वो हाईलाइट करना चाहिए कि आप बैकएंड में काम कर रहे हो, आप ये टेक्नोलॉजीज के साथ काम कर रहे हो। बिकॉज रिक्रूटर को टेक्निकल नॉलेज नहीं है ज़्यादा, अगर है भी तो वो ये चीज़ें सबसे पहले देखेगा टेक्निकल स्क्रूटिनी करते हुए। तो आपको वो चीज़ें हाईलाइट करनी है कि आप प्रीडोमिनेंटली किस टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हो। अगर आपने प्रीवियसली फुल स्टैक में काम किया था और अभी आप फ्रंट एंड के लिए अप्लाई कर रहे हो तो क्या हाईलाइट होना चाहिए ज़्यादा? फ्रंट एंड हाईलाइट होना चाहिए ज़्यादा, ना कि फुल स्टैक से रिलेटेड, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। कमिंग बैक टू माई पॉइंट, मैं बता रहा था स्टेजेस। तो जैसे ही अभी रिक्रूटर ने चेक कर लिया, स्क्रीन कर लिया, नाउ इट विल बी गोइंग टू द हायरिंग मैनेजर। सो नाउ हायरिंग मैनेजर इज द पर्सन हु इज गोइंग टू असेस यू ऑन व्हाट पॉइंट्स कि आपने प्रोजेक्ट्स कौन से किए। मैं फ्रेशर्स की बात कर रहा हूँ जो लैटरल हायरिंग में अप्लाई कर दिए, प्रोजेक्ट्स कौन से किए, इंटर्नशिप कौन सी किए, आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, आपकी कैपेबिलिटीज़ क्या है और आपकी अचीवमेंट्स क्या है। तो वो चीज़ अगर उसको क्लियरली वहाँ पे समझ में आ रही है और वो आपको जज कर पा रहा है, असेस कर पा रहा है, तो वो बोलेगा कि इस बंदे को बुलाओ इंटरव्यू के लिए। तो उस केस में उस फ्रेशर्स के लिए अपॉर्चुनिटी बन जाती है, ठीक है। तो वहाँ पे आपने तो कुछ नहीं किया, सब कुछ किया किसने? आपके रेज्यूम ने किया। सो एट दैट टाइम इट इज़ वेरी मच क्रूशियल दैट यू क्रिएट अ रेज्यूम सच अ वे कि दैट पर्सन हु इज सिटिंग देयर इवन यू आर नॉट एक्सपीरियंस बट ही गेट्स इम्प्रेस्ड विद योर रेज्यूम, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट एनीवन कोई अदर क्वेश्चन? सर ईयर गैप का आंसर किस वे में देना चाहिए? ईयर गैप का आंसर, सी यू हैव टू बी वेरी मच ऑनेस्ट, ठीक है। अगर आप ऑनेस्टी शो नहीं करोगे तो उसको डाउट होगा आपकी इंटीग्रिटी पे, ठीक है, कि वेदर दिस पर्सन विल बी ट्रांसफर्ड इनफ और नॉट लाइक वंस वी ऑफर द जॉब। सो आप जस्टिफाई करो उसको तरीके से। और बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे कि अगर गैप ले रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करते हैं। जैसे आपने कहा था कि आपने टीचर का काम किया था, अब उसको इट्स अप टू हर दैट हाउ शी इज प्रेजेंटिंग हर गैप। इफ शी इज इन अ पोजीशन टू से कि मैंने वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखी जो मैं अभी अप्लाई कर रही हूँ और मेरा जो कुछ भी वहाँ पे लर्निंग रहा है दैट आई एम अप्लाइंग राइट नाउ इन माय करंट जॉब और आई बी अप्लाइंग, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी वहाँ से और क्या क्या सीखा वो भी बताना चाहिए। सीखा बोल दिया और छोड़ दिया, दैट्स नॉट, दैट इज इनकम्प्लीट पार्ट। आपने पर्सनल मतलब जैसे कि हम कहते हैं ना सॉफ्ट स्किल में लीडरशिप सीखी, टाइम मैनेजमेंट सीखा, डिसिप्लिन सीखा, प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखा, वो सबको आपको आंसर करना आना चाहिए। तो आप उस तरीके से जस्टिफाई कर सकते हो। एजुकेशन का आपको श्रीनिक सर ने बताया था कि इस तरीके से आप बता सकते हो। जैसे इन्होंने जो इंजीनियरिंग की है उस इंजीनियरिंग में जैसे उन्होंने मुझे याद नहीं आ रहा है किसी ने बताया था कि मैंने PLC काढ़ा, मतलब उन्होंने क्यों ग्राफिक डिजाइनिंग किया था, किसने बताया था वो काढ़ा, वो सब आपने बताया था ना। तो उन्होंने बताया था कि मैंने वहाँ पे वो सारी चीज़ें सीखी थी और वो मैंने यहाँ पे अभी मतलब वो वहाँ से मैं अपने इंटरेस्ट एक्सप्लोर कर पाया और उसकी वजह से मैं ये इंडस्ट्री में आया, इस रोल में आया, ठीक है। जस्टिफाई करना इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। हम लोग जस्टिफाई क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज हम लोग प्रिपेयर नहीं करते। आप लोग पहले बैठ के सोचते नहीं हो कि मैं अगर ये क्वेश्चन शूट हुआ तो मैं क्या बोलूँगा। अगर आप लोग प्रिपेयर रहोगे तो आपके लिए डिफिकल्ट रहेगा क्या? नहीं रहेगा। आप कॉन्फिडेंटली आंसर कर सकते हो। जहाँ हम तो आपका कॉन्फिडेंस देगा वो क्वेश्चन उस पर ज़्यादा आपको प्रोव ही नहीं करेंगे। जहाँ पे आप लैक ऑफ कॉन्फिडेंस शो करोगे आपको प्रोव करेंगे, ठीक है। तो दैट इज द पॉइंट। एनीवन एल्स? और कोई क्वेश्चन? नहीं? सर समटाइम्स हम प्रोजेक्ट्स के लिंक्स ऐड कर देते हैं रिज्यूमे में, हाँ, तो वो करना चाहिए या नहीं? आप कर सकते हो बट मुझे आइडिया नहीं है, बट इज देयर एनी वेबसाइट और एनी प्लेटफॉर्म जहाँ पे सारी आप इनपुट कर सकते हो? ऐसा रहता है क्या? जैसे आप ओपन सोर्स में बहुत सारे लोग मतलब एक प्लेटफॉर्म रहता है, सारी अपनी यूआरएल्स वहाँ पे अटैच कर सकते हो और उस पर क्लिक करने के बाद वो सारे देख सकते हैं। सी मेरा सोचना ऐसा रहता है कि अननेसेसरी बहुत सारे लिंक्स मत डालो, जो रेलेवेंट है। आप कुछ कहते हैं गिटअप में डाल सकते हैं, हाँ, सी यू कैन यूज गिटअप, ठीक है। और एक चीज़, अगर आप लोगों ने प्रोजेक्ट्स नहीं किए अपने कॉलेज डेज में या फिर अभी आपने कोई प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं किया तो प्लीज़ डू सम प्रोजेक्ट्स, बिकॉज आपको वहाँ पे कुछ बोलना है, आप ब्लैंक नहीं रह सकते। मैंने जितने भी इंटरव्यू लिए नो पर्सन वॉज एबल टू से ऑन देयर करंट प्रोफाइल, देयर करंट रोल्स, देयर करंट कॉन्ट्रीब्यूशन, देयर करंट प्रोजेक्ट्स दे आर वर्किंग ऑन। सब बस मैं ये दे आर लाइक सिंपली टेलिंग मी दी नेम ऑफ द प्रोजेक्ट जिसपे आप क्लाइंट के जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, बट यू आर अनेबल टू डिस्क्राइब। मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप लोग डिस्क्राइब क्यों नहीं कर पा रहे हो? आपने एज अ ग्राफिक डिजाइनर भी काम किया है तो आपने क्या कंट्रीब्यूट किया है? आपने पोस्टर्स बनाए तो कैसे पोस्टर्स बनाए? टेल देम यार, आप लोग बोल क्यों नहीं पा रहे हो? आप लोग बोलोगे नहीं आपने काम क्या किया है तो यहाँ पे काम करने का क्या मतलब? यू आर सिंपली अ फ्रेशर हु डू नॉट हैव एनी एक्सपीरियंस,
अकेडमिक्स में भी जो सीखते हैं ना बंदा वो भी बोल पाता है कि मैंने ये चीज़ें सीखी है। आप लोग तो यहाँ पे काम कर रहे हो, देन यू शुड बी एबल टू सी कि से मतलब आपने क्या काम किया है। ठीक है, परसेंटेजेस और वो सब तो बात की बात है, पहले आप ये तो बोलो कि आपने क्या क्या किया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एंड हाँ, अगर आपने प्रोजेक्ट्स नहीं बनाए तो मेरे हिसाब से ओपन सोर्सेस रहते हैं जहाँ पे आप जाके अपने खुद के प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, शोकेस कर सकते हो, तो वो आपको करना है। और फिर हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करना है आपको। ठीक है, आपके जो जूनियर होंगे जो कॉलेज में, वहाँ पे मेरे हिसाब से अलग अलग इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं, तो आप उसमें पार्टिसिपेट करो। ठीक है, अपने अचीवमेंट्स वहाँ से लाओ और यहाँ पे इनपुट करो, तो यू हैव टू डू दोज थिंग्स। ठीक है, अभी आपने देखा वो रेज्यूम जो गूगल में शॉर्टलिस्ट हुआ, तेरा प्रोजेक्ट उसमें आपको भी करने पड़ेंगे। सिंपल है, एमएनसी में जाना है तो एमएनसी लायक करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन वीक है, टेक्निकल कुछ आता नहीं है, बस करने के लिए काम कर रहे हो तो वही 4 लाख वाली जॉब करोगे आप लोग। प्रशांत सर आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दे रही है इतना सब सीखने का, तो उसको यूटिलाइज करो। मैं जनरली बता रहा हूँ, मेरे टाइम पे मेरे को पता ही नहीं था, मेरे को ये सारे प्लेटफॉर्म्स, ये सारे सोर्सेज मेरे पास अवेलेबल ही नहीं थे। अगर रहते तो शायद मैं आज कहीं और रहता। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको ये प्रिविलेज मिल रहा है, यूटिलाइज है। आज नहीं करोगे तो कल पछताओगे, बिकॉज आई एम टेलिंग यू टाइम आ रहा है जहाँ पे हम सबकी जॉब जो है एआई कहीं ना कहीं लेगा। मैं बता रहा हूँ, जब मैं लास्ट आईटी कंपनी में था, जब ChatGPT आया था, डे 1 मेरे जो CTO थे, ही स्टार्टेड यूजिंग ChatGPT और उसने अपनी टीम को बोला कि सीखो ChatGPT यूज़ करना, किस तरीके से प्रोग्रामिंग हम लोग उस पर यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आप वही बेसिक काम करते रहे तो आपकी जॉब जाएगी, क्योंकि आपके पास पहले कम्युनिकेशन तो है नहीं, तो आप कंट्रीब्यूट क्या करोगे? यू विल बी जॉबलेस, आई एम टेलिंग यू। बिकॉज सी मेरा प्रोफाइल तो ऐसा है, HR इट इज़ वेरी मच सब्जेक्टिव, यहाँ पे साइकोलॉजी यूज़ करनी पड़ती है। आपके टाइम में साइकोलॉजी नहीं, आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग आता है, रीजनिंग आता है। वो लोग अगर वही चीज़ अगर सिस्टम कंप्यूटर कर ले रहा है, सॉफ्टवेयर कर ले रहा है, तो आप लोग क्या करोगे? और है ही नहीं है, गामा आ गया है, बहुत सारे AI टूल्स आ गए जिससे ग्राफिक डिजाइनिंग, PPT सब कुछ बन जा रहा है। तो आप जैसे नॉर्मल एवरेज ग्राफिक डिजाइनर्स का क्या काम है? कोई नहीं रखेगा, फिर ऐसी छोटी मोटी कंपनी में काम करना पड़ेगा। 2 लाख 3 लाख, अगर जॉबलेस हो गए, ले ऑफ हो गया, तो उसके बाद कंपनी आपको कम सैलरी में ज्वाइन करने के लिए कहेंगी। हम लोग करते हैं, मैं बता रहा हूँ, हमारा रीज़न अलग रहता है, कॉस्ट कटिंग करनी रहती है, कंपनी का भी वही रीज़न रहता है, कंपनी करेंगी। तब आप लोग क्या करोगे? इस चीज़ को समझो। अब मैं बता रहा हूँ, अभी नहीं समझोगे तो बाद में पछताओगे। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, आप में से किसी को कुछ नहीं आता है, मैं सच्ची बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग बोल ही नहीं पाए हो इंटरव्यू में कि मैंने ये काम किया। अगर काम नहीं किया है तो मत बोलो कि आप एक्सपीरियंस हो। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक इंटरव्यू किया? कितनों ने रेट्रोस्पेक्ट किया? मैंने लास्ट टाइम पता था रेट्रोस्पेक्ट करना क्या होता है। सी आप लोग नए वर्ड सिखाए, वो भी आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। वापस से खुद को एग्जामिन करना, एनालाइज करना, इवैल्यूएट करना, कितनों ने किया? आप लोगों ने किया? आपने किया? और क्या क्या अभी तक आप लोगों को इस पर इम्प्रूवमेंट आया है? क्या क्या चेंजेस है आपको? CV चेंज किया? जिनको मेरा CV चेंज करने का था नहीं किया था, बहुत से लोगों ने बताया, आपने किया। आपने आपको क्या चेंज लाया? सर, जो वर्क एक्सपीरियंस बताना है कि तुम्हारा किस चीज़ पे काम कर रहे हो, और जो आपने पूछा था कि आपका वहाँ रोल क्या है, टीम में काम कर रहे हो या इंडिविजुअल कर रहे हो, तो उसमें मेरा थोड़ा प्रॉब्लम आया था वो, और इंग्लिश कम्युनिकेशन में उस पर काम तो करो। आपने क्या काम करना स्टार्ट किया है? वो उसका कैसा बताना है, उस तरीके से वो लिख के हाँ। प्रॉपरली उसको चेक कर। इंग्लिश के लिए क्या करते हो? सर, इंग्लिश के लिए जो हमने पढ़े थे यहाँ, तो वही उसको रेफर कर रहा हूँ सर। प्रशांत सर, ये लोग बाद में के बाद इतना टाइम रहता है कि सर अलग से इंग्लिश कोचिंग या कुछ ट्यूशन वगैरह लेना हो तो ले सकते हैं, और इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी हो तो डू दे हैव दैट मच ऑफ टाइम? They can come before time or after time, because since morning 10 to 6 they are other busy. ऑक्यूपाइड। Yes, yes. सी इट्स अप टू यू नाउ, अगर करना है तो आप लोग कर सकते हो। मैं बताता हूँ, मुझे टीचिंग का बहुत शौक है। ठीक है, मैं जाना चाहता हूँ पब्लिक स्पीकिंग में, टीचिंग में। मैं मॉर्निंग निकलता हूँ सुबह 8 बजे घर से, मैं ऑफिस टाइम से अराउंड 9 आई रीच देयर।
मेरा ऑफिस खत्म होता है 5:30, आज बस लीव्स दी प्लांट एट अराउंड 5:45। मैं घर पहुंचता हूँ 7 साढ़े 7 बजे। मैं ऑनलाइन क्लासेस भी लेता हूँ। स्टार्ट होती मेरी क्लासेस 7:30 या 8 बजे, 2 घंटे की क्लास होती है ऑल्टरनेट डेज एंड सैटरडे संडे फिक्स। क्यों? बिकॉज मुझे शौक है, मेरा पैशन है। अभी अगर आपको इंग्लिश इम्प्रूव करनी है तो आपको सोचना पड़ेगा। Sir, already we have arranged English session Earlier you have arranged. Yes, तो yes. आप लोगों ने बेनिफिट लिया नहीं लिया? for few candidates. ओके। New the remaining actually we are going to. जिन्होंने इंग्लिश जो सेशन हुए थे यहाँ पे सेमिनार जो उसका प्रिविलेज लिया नहीं लिया? कितने थे जिन्होंने लिया? और कौन थे सेशन में? कितना इम्प्रूवमेंट देखा आप लोगों ने इंग्लिश में? See, I believe there is only Tanushi, right? You are Tanushi. Ashwini, very sorry. Okay. So Ashwini is only the person who is trying to communicate with me in English. बाकी कोई नहीं कर रहा है। मैं जज करता हूँ। I'll be very much glad. वो कोशिश तो कर रही है जैसे कि जब भी उसको, बाकी कोई नहीं कर रहा। और अगर आपने इंग्लिश के यहाँ पे सेमिनार्स किए हैं तो फिर आपको आना चाहिए उसको कैसे यूज़ करना है, यूटिलाइज करना है, उसका एप्लीकेशन आना चाहिए। कितने लोग यहाँ पे जो अपने कलीग से इंग्लिश में बात करते हैं? उस दिन जब हम लोग आए थे उसके बाद बताने के बाद कि मराठी हिंदी में जब काम चला रहा आपको, एटलीस्ट जो काम आप लोग कर रहे हो, मैं नहीं बोल रहा हूँ जो आउट ऑफ प्रोफेशन जो आपके काम है उसमें आप इंग्लिश में बात करो, एटलीस्ट जो आप काम कर रहे हो और दैट पार्ट कम्युनिकेट इन इंग्लिश। यार समझाओ रिक्वायरमेंट क्या है, क्या करना है, एटलीस्ट तो समझाओ इंग्लिश में। वही चीज़ आपको बाद में करनी है एमएनसी में, तो अभी से प्रैक्टिस डालो ना। वेट कर रहे हो क्या वहाँ पे झटका मिले और फिर अक्ल है कि वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा, आपको इंग्लिश क्लास लगानी पड़ेगी। थिंक अबाउट इट, मेक अ हैबिट। आई एम टेलिंग यू, अगर आपको लग रहा है कि आपका जो बाकी का कलीग है अरे क्या यार छोड़ना है, इंग्लिश में बात कर रहा है, छोड़ रहा है, उसको छोड़ दो, तुम इंग्लिश में बात करो। प्रशांत सर, मेक अ हैबिट। आई एम टेलिंग यू, जो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, जो भी इनको आपस में काम करना है, दे आर स्पीकिंग, दे आर कम्युनिकेटिंग इन इंग्लिश। सारे जो भी काम है वो आपस में डिस्कस इंग्लिश में ही करना है। Already they have been told and If I you also are taken why are you some. not doing that part? I told them watch उनका काम है videos. कहना और करवाना। He is trying to arrange those things for you. But if you are not practicing it, watch, जॉब नहीं मिलने वाला। यहाँ पे जब तक नहीं लगेगा, प्रशांत की एज अ सेम एटीट्यूड, आई लाइक इट। जब तक यहाँ पे नहीं लगेगा तब तक करोगे नहीं। मैं भी गिरा हूँ, एक बार झटका लगा है, तब जाके मैंने सोचा कि नहीं है करना तो पड़ेगा। आप लोग का भी नागपुर में हम लोग बहुत स्लो पेज चल रहे हैं। टीयर 1 सिटीज़ में जाइए, पैशन फॉलो करते हैं लोग अपना। आईटी की जो फ्रेशर जब जो स्टार्ट किए ना करियर, वो अपना पैशन फॉलो करते हैं, एंटरप्रेन्योर बनते हैं, कुकिंग में शेफ है, सारे पैशन फॉलो करते हैं वो लोग। आप लोगों में वो एंथुसियाज्म ही नहीं है, वो ज़ीन ही नहीं है। चेहरा उठा के आ गए, काम करना है, काम कर लिया, घर जाना है, हाँ ठीक है ना, सीख रहे हैं ना, दैट एटीट्यूड वोंट वर्क। सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे। मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे जाओगे आपको। बहुत फास्ट पेस चल रही है दुनिया, स्पेशली आईटी में तो बहुत ज़्यादा। मेरे दोस्तों पे मैं प्रेशर वर्कलोड देखता हूँ ना, वो प्रेशर में इतना पागल हो जाते हैं, उसको वहाँ जाके एडवांस एक साथ सीखना ही पड़ा। तो यहाँ पे नहीं सीख रहा था, वहाँ गया कंपनी में, उसको सिटको में जॉब लगी, वहाँ उसको सीखना ही पड़ा, एनालिसिस करना पड़ता है। उसको तो क्लियरली बता दिया गया अगर आप सीख रहे हो सीक्वल, एडवांस एक्सेल, तो हम आपको प्रमोट करेंगे उस रोल पर। आपको तो यहीं पे वो सारी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, तो व्हाई यू आर नॉट यूटिलाइजिंग इट? थिंक अबाउट इट। और मैं बता रहा हूँ, डिसिप्लिन इज वन ऑफ द की पार्ट जो हम लोग मिस करते हैं। हम लोग सब विराट कोहली को फॉलो करते हैं, देखते हैं, उसको एडमायर करते हैं, बट वो नहीं देखते कि वो क्या काम करता है डेली बेसिस पे। आप लोगों ने देखा हो, वो बोलता है ना वीडियोज़ में कि मैं रोज़ ही एक टाइप का खाना खाता हूँ, मैं बोर नहीं होता हूँ। हम लोग बोर हो जाते हैं जब हमको पता जाता है कि कम्युनिकेट करना है इंग्लिश में, डेली प्रैक्टिस करना है इंग्लिश में, एक नया वर्ड सीखना है। हम लोग बोर हो जाते हैं, 3-4 दिन करेंगे फिर बोर हो जाएंगे। टूट गई चेन, नहीं बन सकता विराट कोहली। मैं भी एफर्ट्स 100% नहीं दे पाता, बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट सो दैट आफ्टर अ सर्टेन एज आई एम इन अ पोजिशन टू परस्यू माई पैशन। मुझे कोई ज़रूरत नहीं कि इतने कम एक्सपीरियंस में मैं ये सारी चीज़ें करूँ, बट इट्स माई पैशन, आई एम फॉलोइंग इट। व्हाट्स योर पैशन? You want to be a software developer, you want to be a graphic designer, think are we actually doing those things or not? आपके मम्मी पापा नहीं बताने वाले आप। मेरे पापा बिजनेस करते हैं। He told me simply,
मैंने जब MBA पूरा किया आई थॉट आई विल सिटिंग इन बिजनेस, बट ही सेड कि तू अभी क्या बिजनेस में करेगा। छोटा भाई मेरा कर रहा था, मेरा हाथ पकड़ने के लिए तब कोई नहीं था। अब मुझे लगा मुझे करियर तो खुद से ही बनाना पड़ेगा। आई स्टार्टेड ग्राइंडिंग माई सेल्फ। मुझे तो कोई ज़रूरत भी नहीं थी, मैं तो कर सकता था बिजनेस पापा के साथ बैठ के, मेरे सारे फ्रेंड्स कर रहे थे। अभी भी मैं बताता हूँ, हमारी समाज में क्रिकेट टूर्नामेंट चालू है, मैं अपना क्रिकेट फनाटिक, बट मैं नहीं खेल रहा हूँ बिकॉज मुझे पता कि अभी मुझे मेरा करियर बनाना है, मेरा पैशन है, तो मुझे करना पड़ेगा। तो आई एम डूइंग दैट पार्ट। वरना मेरे ऐसे भी दोस्त हैं जो जॉब कर रहे हैं लेकिन टाइम निकाल के हाफ डे लेके फिर वहाँ पे खेलने जा रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ। इट्स अप टू यू नाउ, आपका हार्ट क्या बोल रहा है। कनेक्ट नहीं है कि प्रोफेशन के साथ तो छोड़ दो, मैं बता रहा हूँ। छोटी मोटी जॉब कर लो क्योंकि आप लोग ग्रो नहीं करने वाले। प्रशांत जी आगे सिखा देंगे, उनका काम है सिखाने का। आप लोगों का टाइम आ जाएगा, वो कोशिश करेंगे, आप लोग नहीं कर पा रहे होंगे, उनके पास नहीं आ जाएंगे, उनको उन पर फोकस करना पड़ेगा। वो जिंदगी में आप पे फोकस नहीं कर सकते। और यू आर ग्रोन एनफ। आप लोग बहुत से लोग जो करियर चेंज किए हो ऑलरेडी एक हद तक आके आए हो आप। एक बार तो गड्ढे में गिर गए, दूसरी बार क्यों गड्ढा खोज रहे हो खुद के लिए। प्लीज टेल मी, आई एम टेलिंग यू, टेक इट सीरियसली। मेरे को बहुत बुरा लगा था जब आप लोगों ने ना रिज्यूम क्रिएट किया अच्छे से, ना आप लोग इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हुए, बहुत गंदा लगा था। अपने सब तो इतना चिढ़ गए थे, फिर तो आखिर में एकदम कैजुअली ले रहे थे इंटरव्यू। मैंने क्लियरली कहा, आप लोगों को पता है बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि सर ने आखिर में एकदम स्लाइड बंद कर दिया। क्यों? बिकॉज आप लोग इरिटेट इतना करते हो सब। सर वॉज एक्सपेक्टिंग समथिंग एल्स एंड यू आर शोइंग समथिंग एल्स। यू आर नॉट मैचिंग इवन अप टू द एवरेज। बेंचमार्क पे आप लोग जो बोलते हैं ना अपन, ये बेंचमार्क है एवरेज का, वहाँ तक भी आप लोग नहीं पहुँच रहे हो। इन टर्म्स ऑफ योर कम्युनिकेशन, इन टर्म्स ऑफ योर रेज्यूमे राइटिंग। जानते हैं आप लोग हो कि मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता हूँ, बट आप काम ही नहीं कर रहे हो। आई वोंट बी सॉरी फॉर दिस थिंग, आई बी अपफ्रंट, बिकॉज जो है वो है। ठीक है, चलिए, एनीथिंग एल्स दैट यू लाइक टू आस्क रिगार्डिंग रेज्यूमे राइटिंग? एनी अदर क्वेश्चन? कर सकते हो, रेफरेंसेज ऐड कर सकते हो, बट मतलब रेफरेंस टू बी जेन्युइन, और रेफरेंसेज जो रहते हैं वो थोड़े से मतलब क्वालिटी पर्सन होना चाहिए। लिंक्डइन में एक और ऑप्शन रहता है, आप लोगों को पता है, रिकमेंडेशंस देते हैं वो, है ना, तो बोलो आप, ठीक है, वो भी चीज़ आप ले सकते हो। आपकी जो भी मेंटोर्स है, कलीग्स हैं, ठीक है, उनसे जो सीनियर है उनसे ले सकते हो। दैट ऑल्सो एड्स वेट टू योर प्रोफाइल। ठीक है, जब भी आपका लिंक्डइन चेक होगा तब वो रिकमेंडेशन भी चेक की जाएगी। ठीक है, एनीथिंग एल्स? और कुछ? See that, I mean, I'm not the right person to justify this question. Reason being, I'm not that much technically sound, but yeah, I can say that you can just look for those individuals who are very much updated with various technologies, जो लोग टेक्नोलॉजी पे कंटेंट बनाते हैं। आप लोगों को पता हो बहुत सारे नाम, है ना, बहुत सारे जो अभी तो बहुत सारे जो बड़ी खान में काम करते हैं, तो वो लोग भी अपने अलग अलग यूट्यूब पेजेस स्टार्ट किए हैं, उन्होंने अपने पॉडकास्ट स्टार्ट किए, फिर उन्होंने लिंक्डइन पे वो लोग एक्टिव रहते हैं। मैं ना नेक्स्ट टाइम आपको बताऊंगा, एक ऐसे ही जो IT प्रोफेशनल डेवलपर्स रहते हैं, उनका एक अलग कम्युनिटी बना है, जस्ट लाइक लिंक्डइन, जहाँ पे वो सारी चीज़ें डिस्कस होती है स्पेसिफिकली सिर्फ डेवलपर्स के लिए। वो मैं नेक्स्ट टाइम आपको बताऊंगा। प्लस मैंने आपको बताया था, अनम को भी बताया था, बिहांस ड्रिबल, देखा आपने क्या होता है वो? ठीक है, तो उसमें आप लोग एक्टिव रहो। Those who want to create career into designing, product designing is a good part. I mean, product designers जो बनते हैं उनमें बहुत पैसा मिलता है, ठीक है, ग्राफिक डिजाइनर्स को भी मिलता है, बट प्रोडक्ट डिजाइनर्स को ज़्यादा मिलता है, बिकॉज जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी में काम करते हैं। जब मैं B2B SaaS कंपनी में काम कर रहा था, तो दैट पर्सन रिसेंटली ग्रेजुएटेड, उसका यहाँ पर हमने पैकेज ही 12 लाख का रखा था। उसने अच्छी जगह से इंटर्नशिप्स वगैरह की थी, अच्छे प्रोजेक्ट्स पे काम किया था, और उसका जो पोर्टफोलियो भी था वो भी बहुत अच्छा था। ये सारी चीज़ें यू हैव टू क्रिएट, स्टार्ट क्रिएटिंग इट। ओके, और कुछ? सर हमारे कुछ करंटली ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स रहते हैं जिसमें वर्क करते हैं,
जी। जो लाइव नहीं रहते हैं हाँ। बट सिर्फ काम चलो पे कम है, क्या हम वो रेज्यूमे मेंशन कर सकते हैं? हाँ, आप कर सकते हो, लाइव नहीं है बट आप मतलब बोल सकते हो कि हमने इस पर काम किया है और ये चीज़ हमने बनाई है जो कुछ भी है, ठीक है? Anyone else? कोई क्वेश्चन? आप लोगों को भूख लग रही होगी ना? टाइम हो गया ना, कितने बजे? 1:30 हमने लंच करके आप सब 1:30 में आ गए, ठीक है? चलिए, so can we wrap up for today? Yes. Okay, I hope you will take my point seriously now onwards, work upon it, ठीक है? मेरे जैसे 100 आएंगे 100 चले जाएंगे, आप लोगों को रोने के भी नहीं रहना, you have to grow, ठीक है? ये सारे तो ग्रो कर रहे हैं जो यहाँ पे आ रहे हैं, मैं उतना ग्रो नहीं किया हूँ, I'm just in the growing stage right now, but I'm developing and growing myself, so you also do that part. टाइम लगेगा, बट कहते हैं ना बेबी स्टेप्स लेंगे तभी जाके हम लोग कुछ बड़ा अचीव कर पाएंगे. स्टार्ट डूइंग इट. आप एक सी, मैं ब्लंटली कहूँगा, यू मे फाइंड colleagues, you may find peers, friends who will stop you from doing those things. Do not get distracted. मैं बता रहा हूँ मेरे करियर में भी हुआ था. आज मेरे पास मेरे फ्रेंड्स लोग नहीं आ रहे, क्यों? Because I am very much workaholic, I am very much into like my stuff. Because I want to grow my career and they do not. तो मैं उनकी वजह से डिस्ट्रैक्ट नहीं हूँ. आप लोगों को भी देखना है आपके सराउंडिंग में जो हो रहा है आपके पास, जो एनर्जी आपके पास है, इज इट फोर्सिंग यू टू ग्रो और नॉट? वो देखो, जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं, जो लोग फोर्स करते हैं ना भी करना पड़ेगा वरना कैसे होगा, नो, वही चीज़ है, वही रियलिटी है. आप जब 10 लोगों के बीच में बैठोगे और वो सारों को अलग अलग टेक्नोलॉजी आती होगी और आपको 2 टेक्नोलॉजी आती होगी तो आप विल बी फोर्स टू दोस थिंग्स. तो वो अभी से ऐसा एटमॉस्फेयर बनाओ. मैं तो कहता हूँ चैलेंज लो अपने अपने एक दूसरे के साथ. रहते हैं ना मेरे हिसाब से कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स रहते हैं जहाँ पे आप लोग जो अलग अलग लॉजिक्स वगैरह, सिंटैक्स वगैरह जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन रहते हैं आईटी के, वो उस पर आप कॉम्पिटिशन कर सकते हो. करो वो चीज़. रैंकिंग देखो कौन रैंक कर रहा है, क्या रैंकिंग है, करो वो चीज़. वैसे ही ग्रो करोगे आप लोग. क्यूरियोसिटी वैसी जगेगी वरना नहीं जगेगी, ठीक है? ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर. दिस वाज ऑल अबाउट resume writing. Still, anytime if you have some doubt, any query regarding resume writing, feel free to reach me out. Okay? चलिए, thank you so much. No, I do not teach English. Actually, I am teaching HR subjects only. You may go for specific specialized person who is into English speaking. Okay, मैं भी इतना प्रोफेशनल नहीं हूँ with English, but you may go for that part. Okay, it's good. If you are thinking of doing it, go for it. ठीक है फिर? चलिए, बाकी सब, thank you so much. Thank you so much.